manager. At the end of the session yesterday, we were discussing role of operation manager, which includes plan, organize, staff, lead, and control. In short, you can remember PDCA, plan, do, check it. Let us see now the 10 critical decisions in operations management. We are trying to learn few things in detail because maybe this topic you're learning for the first time in your whole life. So that's why I'm trying to give you a clear picture of all the things included in this topic as well as in this process. So when we talk about 10 critical decisions in operations management, the first one is quality management. We will discuss each one in detail. Quality management, when we talk about quality management, the first question arises in our mind is what is quality, or how we can define the quality, and who will be responsible for the quality. So there are different aspects of quality. Quality in terms of producer, quality in terms of customer, right? So this is very crucial decision where you need to understand what is quality. If a product is manufactured as per the specifications and there is no deviation, or there is very slight deviation, then we can talk about quality. So the product follows the quality norms, we say. And who is responsible? Maybe a quality manager, maybe a person who is producing that product is also responsible for this decision. So we will discuss again such things in detail. Then comes service and product design. So service and product design means what we are going to produce, which product or which service we are going to offer, or how should we design these products and the services. So again, in these crucial decisions, one has to be very alert, like the product choice or the service choice. If it goes wrong, your complete business may go wrong. Once we decide about the product or the service, next comes is process and capacity design, like which process we will utilize to produce that product, or which process I will follow to give a particular service. Right now, I am using Zoom meeting to provide you service, to provide you my session on OSCM. So similar way, how the product will be produced. The process we need to understand, and what all equipments or technology will be utilized. Right now, I am using laptop, and which technology I am using IT technology, Zoom meeting. Then comes location. Location, where my plant facility will be there, or where I will locate my office. If it is service, then this will not matter a lot. But then still, in few services, you have to place yourself very near to your customers, where the customers will be easily reach you. Customers will easily reach you. If we talk about a doctor, so a doctor has to be very near to a locality, right? In rural areas, we have seen or we have heard so many stories that doctor stays 5 kilometers, 10 kilometers away from the village, and there is no way to reach doctor. Or maybe in emergency at night, it becomes very difficult to trace doctor in a village. So again, location plays a very important role. Location in terms of production, in terms of operations, we need to understand the raw material required for that product should be available nearby. If my plant is in Bhosri, the raw material required for that particular product should be available easily. Roads has to be there. Even if I am trying to import it, the import facility should be available, and there should be warehouses available, or my vendors should be near to my factory.
on what criteria should we base this location decision? So location decision can be based on your raw material availability, labor availability. Labor, again, labor is very important. Why? Because if you do not have skilled labor nearby, if your location is in remote village, there is no place to stay, or there are no hostels as such, or there is no locality nearby, right? So that becomes very difficult for human power or maybe skilled workers to stay, and then your production may hamper. So location, while choosing any location, we have to be very careful about raw material availability, labor availability, and the transportation part. This is important. If you are trying to make Bisleri is mineral water, so ample of water should be available there. Ample of water at least should be available below the ground level. Then and then you can put that facility there. Layout design. Now, day before yesterday also we were discussing about layout. Layout is arrangement of machines or arrangement of facilities to produce any product or to provide any service. Layout of a hospital, आप लोगों ने हॉस्पिटल का एक लेआउट देखा रहेगा जहाँ पे डॉक्टर्स स्टार्ट में जैसे आप एंटर होते हैं तो नीचे रिसेप्शन रहता है, देन immediately besides reception, maybe left hand side, right hand side, you can see OPD, जहाँ पे डॉक्टर्स चेक करते हैं. उसके ऊपर फैसिलिटीज या उसके पीछे की साइड में रहेगा जहाँ पे एडमिट कर सकते हैं हम लोग पेशेंट्स को. उसके ही पास में ऑपरेशन थिएटर हो सकता है, एंड स्टोर्स एंड ऑल आर मे बी ऑन फर्स्ट और सेकंड फ्लोर. बट ये सब चीजें इस तरीके से अरेंज की जाती है कि द टाइम कंज्यूम्ड शुड बी minimum. Yesterday also we were discussing about lean manufacturing system. So that must be kept in mind. How large the facility is required. Now I am a teacher, so मुझे कितनी ज़्यादा facility चाहिए? If it is a physical classroom, then I require one classroom and my small cabin, right? Nothing more than that. But for a big company, maybe four-wheeler manufacturing company, there are thousands of parts, small parts utilized to manufacture a small and large parts to manufacture a car, four-wheeler. तो उसके लिए उतना ज़्यादा जगह लगेगा. So layout design कैसे रहेगा? There are two types of layout design. One is process layout and another one is product layout. Now product layout में कैसे रहता है कि one by one हर चीज arrange की रहती है. Maybe from left hand side the raw material is coming and it is processed on each machine, and right hand side the product is manufactured. The complete product is manufactured. If you go to four-wheeler company, you will see product type facility. Many companies use product layout, but in engineering companies, in heavy metallurgy companies, normally it is seen that they use process layout. Process means each process is done in a particular area. Drilling एक process हो सकता है. Drilling means we drill in maybe a metal, maybe a plastic bar or something like that. Drilling है, welding है. Weld means we join two metal parts. Welding, then forging. Forging means you put pressure on a metal plate and you give it a shape. So that is forging. Then comes maybe assembling. Assembling is again a different process where you put all the parts together and you try to give a shape to it, required shape to it as per the specifications, right? So that becomes a process layout. ये सारे processes अलग-अलग रहते हैं. वो भी हम लोग इसमें डिटेल में देखेंगे, maybe in next chapter or next unit. Then human resource and job design. So how do we provide reasonable work environment and how much we can expect our employees to produce? इसका भी एक स्टडी होना बहुत जरूरी है कि what skill will be required, what output we are expecting from each labor. So that is also a very crucial decision. Then comes supply chain management. Supply chain management has become a very general term now. Everybody knows what supply chain is. So here also we need to understand कि हम लोगों को ये चीजें बनानी है या खरीदनी है. Make or buy decision is very important. If for a big company they require a very crucial part,
maybe any nut or a bolt, right? So ये nut bolt बनाने के लिए should that company spend their own time or should they outsource it manufacturing this particular nut? क्यों? Because their target is to manufacture four wheelers, or their target is to build something else. So they cannot spend their time in manufacturing a small nut or bolt, right? In such things, they will definitely outsource it. But outsourcing करते समय भी we need to understand that while outsourcing, whether that design or maybe the manufacturing know-how, technical know-how is very secret or not. If it is secret, then you will not buy it from outside, or you will not outsource it, right? So that decision you should understand. And when we talk about a supply chain starts from an idea generation. Maybe you are an entrepreneur, an idea generated in your mind that you will start a business of maybe XYZ product, or maybe teacups, consumable teacups. Consumable teacups means you can eat those teacups. Tea is poured in that cup, and once you finish that tea, once you consume that tea, you can immediately chew that cup also. You might have seen ice cream cones. So those cups will be similarly same as ice cream cones, right? So you can eat it. अब ये कुछ चीजें आपको बनानी है. So that idea is generated. The moment that idea is generated, your first step of supply chain starts. So idea also flows from your brain to maybe computer design, and from design to maybe a pilot study. What is pilot study? Is testing the product. Small environment. In a small environment means you are producing 2, 3, 4, 5 cups in a lab or in a small room, and you are testing it. वो कप सही में अच्छे durable रहेंगे नहीं रहेंगे, whether it can withstand the temperature of a tea or not, or when we will eat it, how it will taste. ये सारी की सारी चीजें जब टेस्टिंग होता है एक लैब में, एक इन्वायरमेंट में, उसको हम लोग पायलट स्टडी कहते हैं. सो आइडिया जनरेशन, डिजाइनिंग, पायलट स्टडी, full fledged operations, supplying raw materials, sending this product to the different maybe dealers, maybe retailers, maybe different outlets in a city, in a state, in a country, and so on. तो ये जितना भी process रहता है, this is called as supply chain, and management of this chain is called as supply chain management, right? So please remember this term. Now in India also supply chain management term is gaining attention. Multinational companies, they have started providing a position of supply chain managers. So they have started recruiting people naming supply chain managers. So ये हो गया है शुरू, but now it will take some time, some more time to understand that there is a requirement for supply chain manager. Supply chain manager will study the complete flow of material. Then comes inventory material requirement planning, just in time inventory. So कितना inventory चाहिए और आपको कब उसको reorder करना है, इसका भी एक planning होना चाहिए. Then intermediate, short term and project scheduling. Now intermediate short term, it means मेरा जो product रहेगा वो WIP में ज्यादा रहेगा, या फिर वो product finished product में ज्यादा रहेगा, या फिर ये product scheduling कैसे रहेगी. Product scheduling में क्या आता है कि zero time से लेके how much time it will require to take a shape of a product, and when that product will be ready to supply to a customer. So every moment becomes a zero time for a different product or for a different unit of a same product. So subcontracting a production, whether it's a good idea. Subcontracting means अभी रामदेव बाबा का आप लोगों ने देखा होगा कि they have started subcontracting their products. So इस प्रोडक्शन पूरा का पूरा किसी और कंपनी को बनाने के लिए दे देते हैं. They will provide you the final product and you will just put a label on it. Or many a times you give them labels also. You give them authority to put your logo, your label on those bottles or on those products. So ये हो गया subcontracting. तो subcontract, whether we can go for subcontracting,
because in a large scale manufacturing, or if you are unable to handle a big unit or different units situated in a same country or different countries, तो वहां पे आप लोगों को ये हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो you start subcontracting the things. Are we better of keeping people on payroll during slowdowns? ये भी डिसीजन है. See, only few questions are mentioned here. There are different technical terms or different technical decisions which we need to understand. But ये कब आप लोग समझना शुरू करोगे? जब आप उस प्रोसेस में रहोगे, जब आप जॉब करना शुरू कर दोगे, then you will start understanding the intricacies of each and every point which I am mentioning here. Now, अभी जो लॉकडाउन हुआ था या स्लो डाउन हुआ था, इसमें हम लोगों को पेरोल पे रखना जरूरी है या we will recruit third party? You might have seen many banks, they recruit students through third party. अगर आप लोगों का भी रिक्रूटमेंट कहीं पे होता है बैंक्स में, तो they never directly recruit people, they go do it through third party. Not only banks, there are many organizations, they recruit third party labor. इससे होता कैसा है कि you need not directly control that labor, you need not directly think about that labor problems and all. सब कुछ जो भी कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, he will take care of that. इससे कंपनी का काफी सारा टाइम और मनी बच जाता है, right? You need not pay them as per the scale of the company. So whatever the amount will be fixed between the company and the contractor, that amount will be paid to contractor, and contractor will pay, keep some commission and pay to those labor. Now, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये काफी बार अनस्किल्ड लेबर या सेमी स्किल्ड लेबर के बारे में होता है. स्किल्ड लेबर नॉर्मली कंपनी और बैंक्स रिक्रूट डायरेक्टली स्किल्ड लेबर. नेक्स्ट कम्स इज मेंटेनेंस. नाउ मेंटेनेंस मींस व्हाट? We drive our 4-wheeler or 2-wheeler and we regularly maintain it. Even we maintain our body also, right? In the morning we get up and we exercise. या फिर you are maintaining your brain by feeding it with different knowledge. Right now you are listening to my session, operations and supply chain, and you are trying to maintain your brain by feeding it. So इसको maintenance कहा जाता है. In a factory, when we use machines, wear and tear happens. Wear and tear means उसको वो थोड़ा सा मराठी में अगर कहें तो उसमें झीज होने लगती है. आप लोग बाइक्स यूज कर रहे हैं, तो बाइक में भी काफी बार जो ऑयल रहता है, वो ऑयल गर्म होके ठंडा होके गर्म होके ठंडा होके उसमें जो उसकी क्वालिटी रहती है वो ऑयल की, या फिर उसमें जो लुब्रिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है वो कम हो जाता है. देन यू नीड टू रिप्लेस द ऑयल, देन यू नीड टू ऑयल योर चेन, देन यू नीड टू चेक द टायर्स, यू नीड टू चेक द ब्रेक्स, क्योंकि ब्रेक जितनी बार अप्लाई करते हैं वो घिस जाता है, वेयर एंड टेयर होता है, तो उसको मेंटेन करना पड़ता है. सिमिलरली इट हैपेंस इन ऑर्गेनाइजेशन आल्सो. और सेपरेट टीम इज रिक्रूटेड फॉर मेंटेनेंस. अब मेंटेनेंस भी दो टाइप्स के रहते हैं. वन इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड अनदर वन इज ब्रेकडाउन मेंटेनेंस. सो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या रहता है? व्हेन यू आर ट्राइंग टू प्रिवेंट एनी ब्रेकडाउन is called as preventive maintenance, and that's why we always say that prevention is better than cure. So जो भी कुछ ब्रेकडाउन होने से पहले ही आप उसको मेंटेन कर देते हो. आप भी अपनी बाइक्स को maybe after 5,000 kilometers or maybe after every 6 months you start maintaining it. आप उसको गैरेज में लेके जाते हैं, जो भी गैरेज का बंदा है वो उसको रिपेयर करके आपको दे देता है. वो कुछ पार्ट्स बदल देता है या फिर कुछ पार्ट्स क्लीन करके वापस उसको रिपेयर लगा देता है, राइट? That is maintenance, and that is called as preventive maintenance. Whereas breakdown maintenance is machine stops working. Machine stops working. आपकी गाड़ी पंक्चर हो गई, that is breakdown. And when you try and replace that tire, that becomes breakdown maintenance. आपकी गाड़ी चल रही थी but हाईवे पे बंद हो गई because of overheat, because of lack of lubricant or maybe lack of coolant, right? तो जब आपने कूलेंट डाला तो आपने ब्रेकडाउन को कंप्लीट किया, ब्रेकडाउन को रिपेयर किया, एंड देन यू स्टार्ट योर व्हीकल. सो दैट इज ब्रेकडाउन मेंटेनेंस. सो रिमेंबर टू टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस. वन इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड अनदर वन इज ब्रेक. That is all about 10 crucial decisions which we need to take for a production or maybe operations. Now try and understand production management and service operations management. What it is. We will compare both. Manufacturing organizations हम लोग उसको physically देखते हैं, so that is tangible.
फाइनेंस के जितने भी स्टूडेंट्स है वो इंटेंजिबल चीजों पे काम करते हैं, बिकॉज दे टॉक अबाउट मनी, बट देन मनी इज नोवेयर सीन। तो जो भी रहता है वो इंटेंजिबल चीजों पे, सो दैट इज अ सर्विस. Doctor is giving you intangible service. I am giving you intangible service. You cannot touch it. This is not in physical form. Whatever I am saying, that becomes a knowledge to you, because whatever I am saying, the way I am saying, the style which I am using, that is my service, right? Next is inventory can be maintained in manufacturing, but यहाँ पे inventory क्या रहेगी? सर्विस में आई एम टीचिंग यू ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट. सो इसमें इन्वेंटरी, whatever knowledge is there, that is in my brain, so nowhere inventory can be seen, so no need to maintain the inventory. Low customer contact. operations में customer से direct contact कम रहता है, because आप factory में काम कर रहे हैं तो you don't know who your customer is. वो काम सब marketing team का रहता है, वो काम retailer या फिर wholesaler का रहता है. so आपका कस्टमर से कांटेक्ट काफी कम रहता है, बट सर्विस में कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है. अगर आप डॉक्टर है तो आपके कस्टमर्स कौन है? ऑल द पेशेंट्स. अगर आप टीचर है, मैं टीचर हूं, तो आप मेरे सब कस्टमर्स हैं, राइट? सो हाई कस्टमर कांटेक्ट इन केस ऑफ सर्विस. लार्ज फैसिलिटीज, मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैसिलिटीज जरूरत पड़ती है, और यहाँ पे स्मॉल फैसिलिटीज. फैसिलिटीज मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेस वेयर वी वर्क. कैपिटल इंटेंसिव रहता है मैन्युफैक्चरिंग, मतलब वहां पे काफी सारा पैसा डालना पड़ता है. बट हम लोग सर्विस के बारे में बात करें तो ये लेबर इंटेंसिव रहता है. यहाँ पे मुझे मशीन्स को खरीदने की जरूरत नहीं रहती है. मशीन्स मींस हार्डवेयर, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स आई विल बाय. बट आईटी कंपनी अगर आपने देखी होगी तो दे प्रोवाइड सर्विसेज, तो वो लेबर इंटेंसिव है. वहां पे हैवी मशीन्स वो लेने की जरूरत नहीं है. वॉट एवर द एसेट इज, दैट इज ह्यूमन एसेट. यहाँ पे मशीन्स आर एसेट. क्वालिटी इजीली मेजर्ड. हम लोग जब प्रोडक्ट बनाते हैं, बीइंग अ टेंजिबल प्रोडक्ट, वी कैन चेक द क्वालिटी, वी कैन इजीली मेजर द क्वालिटी. कि हम लोगों ने ये स्पेसिफिकेशंस दिए थे, अकॉर्डिंग टू दीज स्पेसिफिकेशंस अगर वो प्रोडक्ट्स बैठ रहा है उस स्पेसिफिकेशन में और द डायमेंशंस आर करेक्ट, देन वी से कि इट इज अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. उसका जो ड्यूरेबिलिटी है, सपोज वी से 3 मंथ से चलेगा, तो 3 मंथ से थोड़ा सा ज्यादा ही वो चलना चाहिए, देन वी कैन से कि इट्स product. Whereas in services, quality cannot be easily measured. How good I am teaching, how much you are understanding. मैं जो भी आपसे बात कर रहा हूँ अगर आपको समझ में आ रहा है, तो then we can say कि okay, the teacher is of good quality. मतलब वो अच्छा पढ़ाते हैं. डॉक्टर ने आपको दवाई दी और आपको ठीक लगने लगा, तो the quality or the service quality of the doctor is really good. So that cannot be easily measured. Why? Because उसके लिए कोई स्केल अवेलेबल नहीं है कि आपके 10 पेशेंट्स एक दिन में ठीक हो गए तो इट विल बी कॉल्ड एज अ गुड डॉक्टर. नो, ऐसा कुछ भी नहीं है. वो सब होता है फील करने से. आपको एक आधा डॉक्टर बहुत ज्यादा पसंद है और दूसरे डॉक्टर के पास तो आप काफी बार कहते हो कि नो नो, ही इज नॉट वर्थ इट, उसको कुछ आता ही नहीं है, बिकॉज ही कुड नॉट क्योर योर डिजीज और द पेन व्हिच यू आर सफरिंग फ्रॉम, राइट? सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड व्हाट इज सर्विस. नेक्स्ट कम्स इज स्कोप ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट. नाउ स्कोप में हम लोगों ने पहले भी काफी सारे क्रूशियल डिसीजन इसमें से देख लिया है. फर्स्ट इज प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड डिजाइन. प्रोडक्ट क्या होना चाहिए. वी वर टॉकिंग अबाउट कंज्यूमेबल टी कप्स, कंज्यूमेबल प्लेट्स. इसमें भी काफी स्टूडेंट्स ने स्टार्टअप शुरू कर दिया है. काफी स्टूडेंट्स ने, yesterday I was discussing with my friend, one of my friend, he is in MIT. I'm so sorry, not in MIT, VIM, Vishwakarma University. So his son, he cleared his final degree of engineering in mechanical, and then he started a small scale factory. And what he is manufacturing? He is manufacturing bottles which are utilized in pharmaceutical companies to fill the medicines. तो इतना अच्छा कंसेप्ट लगा. उसमें कुछ भी नहीं है, 2 मशीन्स उनको खरीदने की जरूरत पड़ी. एंड द plastic means plastic granules, pure plastic granules. Many a times we will call it as polyethylene, polypropylene और सारे polymers जो भी रहते हैं उसके granules, उसको पिघलाना है और बॉटल का शेप देना है by blowing air into it and then cap it or maybe put labels यहाँ पे नहीं रहेंगे, only bottles will be there as per the shape required by the particular company. So जितने भी महाराष्ट्र के pharmaceutical companies they have started buying that.
अभी 6 महीने पहले ही उन्होंने वो प्लान डाला है, बट प्रोडक्ट सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है, एंड ही हैज सेलेक्टेड अ राइट प्रोडक्ट। इसमें कैसा रहेंगे तब तक वो बॉटल्स की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज ह्यूमन बींग्स है तो वो बीमार रहेंगे, बीमार रहेंगे तो उनको दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। दवाइयों को देने का मीडियम जो है, इफ इट इज अ लिक्विड, हाउ आई विल गिव यू लिक्विड, मैं आपके हाथ में तो नहीं दे सकता, या फिर आप कटोरी में तो नहीं लेके जा सकते, बाउल है आपके पास उसमें मैंने दवाई डाल दिया। अर्लियर इट यूज्ड टू हैपन, अब क्या है, छोटे छोटे बॉटल्स मैन्युफैक्चर होने शुरू हो गए। सो डॉक्टर विल जस्ट प्रिस्क्राइब द मेडिसिन एंड यू विल बाय इट फ्रॉम अ फार्मासिस्ट एंड देन यू यूज इट। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट विल बी इट्स डिजाइन, डिजाइन में क्या आता है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या रहेगा, कितनी बड़ी बॉटल होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, उसको होल्ड करते समय वो कितना सुटेबल होना चाहिए, कितना टेम्परेचर वो विथस्टैंड होनी चाहिए बॉटल, उसमें रॉ मटेरियल का यूज होगा, कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कैप कैसा होगा, कैप एल्यूमिनियम का होगा या प्लास्टिक का ही कैप रहेगा। ऑल दीज थिंग्स आर डिसाइडेड इन अ डिजाइन। नेक्स्ट कम्स प्रोडक्ट सॉरी प्रोसेस सिलेक्शन एंड प्लानिंग। प्रोसेस सिलेक्शन में मैंने आपको जैसे अभी बताया, राइट, कि प्रोडक्ट लेआउट रहेगा या प्रोसेस लेआउट रहेगा। इसके अलावा भी आजकल काफी सारी कंपनीज थर्ड टाइप ऑफ प्रोसेस दे हैव स्टार्टेड यूजिंग, एंड दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड। हाइब्रिड, कुछ पार्ट्स बनाने के लिए दे यूज प्रोसेस लेआउट, और कुछ पार्ट्स बनाने के लिए दे यूज प्रोडक्ट लेआउट। सो इट इज मिक्स ऑफ टू, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिड प्रोसेस सिलेक्शन, राइट। सो इसका भी प्लानिंग करना जरूरी है। अब ना प्लानिंग में क्या क्या आएगा, यू नो, रॉ मटेरियल, सबसे पहले तो आपके दिमाग में आएगा कि व्हाट टू मैन्युफैक्चर, हाउ टू मैन्युफैक्चर, हु विल मैन्युफैक्चर, वेयर टू मैन्युफैक्चर, राइट, एंड हाउ मच टू मैन्युफैक्चर, ये सब चीजें, व्हाट विल बी द मार्केट, इतने सारे रहते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑपरेशंस मैनेजमेंट, इसमें प्रोडक्ट सिलेक्शन, डिजाइनिंग, प्रोसेस सिलेक्शन, प्लानिंग, लोकेशन, फैसिलिटीज, these are very 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 crucial decisions, very crucial decisions। प्रोसेस सिलेक्शन में एक और चीज जा सकती है, whether it will be manufactured or made by hand or by machines, if machines, how big the machines will be, from where to buy that machine, right। Location and facilities we have already discussed, location, plant location, whenever we try and put a plant, whenever we try and build a building for any plant means, why I'm calling it as a plant, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होता है उसको हम लोग प्लांट कहते हैं, राइट। अब सपोज यू हैव अ कंपनी जहां पे आप उसमें डिसीजन मेकिंग भी ले रहे हैं, मतलब यू सिट इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन जहां पे कंपनी भी है, फैक्ट्री भी है, और आप वहीं पे अपना ऑफिस बना के बैठे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज फर्म, फर्म, FIRM, फर्म। और जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम लोग प्लांट कहते हैं। काफी बार जैसे अभी बुसरी में काफी सारे प्लांट्स हैं, बट उनकी जो हेडक्वार्टर्स है, जो फर्म है, वो बॉम्बे में है, सो वी कॉल इट एज फर्म। एंड सिमिलर कंपनीज, जैसे हम लोग कह रहे हैं अभी पुल्ट्रूजन का, जो मैं प्लास्टिक बॉटल्स बनाने का बोल रहा था, पेट बॉटल्स बनाने के बारे में बात कर रहा था, जितने भी कंपनीज है इन अ पर्टिकुलर एरिया, या फिर महाराष्ट्र में जितने भी पेट बॉटल्स बनाने के, प्लास्टिक बॉटल्स बनाने की कंपनीज हैं, उनके अलग अलग फर्म्स हैं, क्योंकि वो अलग अलग ब्रांड से बेचते हैं। इन सब फर्म्स को अगर मैं एक साथ बना दूं तो दैट बिकम्स इंडस्ट्री। का मतलब इंडस्ट्री जब आप टर्म यूज करते हैं, प्लीज रिमेंबर, इंडस्ट्री मीन्स अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, राइट। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री, क्लॉथ इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री। सारे कॉलेजेस अलग अलग है, अलग अलग ब्रांड पे है, अलग अलग नाम से चलते हैं, बट इन सब कॉलेजेस को हम लोग क्लब कर देते तो दैट बिकम्स एजुकेशन इंडस्ट्री, राइट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री, फर्म, plant। industry, group of firms, firm where decision making is done। decision making में क्या क्या आता है, you know now, क्या बनाना है, कहाँ से बनाना है, कहाँ से रॉ मटेरियल लाना है, who will be the customer, how we will transfer the raw material to the plant, from plant to the customers, from customers to the reverse logistics। now new concept is also coming in the market and we call it as reverse logistics। आप फ्रिज खरीदते हो, फ्रिज के साथ काफी सारा थर्मोकोल, काफी सारा कार्डबोर्ड आता है, इस चीज को आप फेंक देते हो रास्ते पे। नाउ थर्मोकोल स्टेज देयर ऑन दिस अर्थ फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, थर्मोकोल डिकम्पोज होता नहीं है। तो इसका बेस्ट वे है कि हम लोग इसको वापस भेज दे। सबसे इजी सप्लाई चेन, इजी नहीं है वो, बट आपने जो देखा है वो सप्लाई चेन है ग्लास बॉटल्स। आप लोग जब कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो ग्लास बॉटल में, तो बॉटल वापस से आप वहीं पे
शॉप में छोड़ देते हैं और वो शॉपकीपर उठा के उसको एक पर्टिकुलर बास्केट में रख देता है, एंड दोज एम्प्टी बॉटल्स गो बैक टू द फैक्ट्री. दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स लॉजिस्टिक. रॉ मटेरियल मींस दिस इज सप्लाई चेन एंड रिवर्स सप्लाई चेन. प्रोडक्ट आपके हाथ में आ रहा है, प्रोडक्ट को आपने कंज्यूम किया और उसको रिवर्स जा रहा है. अभी काफी सारे कंट्रीज में कंसेप्ट शुरू हो गए रिवर्स लॉजिस्टिक्स के, एंड दिस इज अ वेरी गुड टॉपिक टू रिसर्च आल्सो. Those students who are in operations and supply chain management, they can go for SIP in reverse logistics also. बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सारी चीजें आप इसमें सीख सकते हो. अभी ये जो कचरा रहता है, ये कचरा हमारे घर से निकलता है, somebody collects it, उसमें ड्राई गार्बेज एंड वेट गार्बेज, इसको अलग किया जाता है. प्लास्टिक्स रहेगा ड्राई में तो वो अलग चले जाता है, मेटल रहेगा तो वो अलग चले जाता है. दिस इज ऑल पार्ट ऑफ रिवर्स लॉजिस्टिक्स. Then comes capacity planning, plant layout, material handling facilities. Material handling facilities means ये जितने भी टॉपिक्स में बात कर रहा हूँ ये अलग अलग टॉपिक्स है. I have studied my materials management. I have studied in MMS, मतलब मेरा MMS का स्पेशलाइजेशन ही materials management था, right? And I completed my PhD in supply chain management. Materials management में ये जो थे ये हमारे लिए अलग अलग कोर्सेज थे. जैसे आप लोगों के लिए OSCM, मार्केटिंग, ये सब स्पेशलाइजेशन थे. आई हैव स्टडीड दिस एज अ स्पेशलाइजेशन. मटेरियल हैंडलिंग का मेरा प्रोजेक्ट था उस समय का, जो आप लोग SIP करने वाले हो, कि व्हाट ऑल डिफरेंट मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स आर यूटिलाइज्ड इन फैक्ट्रीज. तो उसके बारे में मैंने रिसर्च किया. नाउ इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ वाचिंग डिस्कवरी चैनल्स, डिस्कवरी या फिर इंफॉर्मेशन चैनल्स, बहुत अच्छे तरीके से उसमें मटेरियल हैंडलिंग फैसिलिटीज दिखाते हैं. अलग अलग कंपनीज के अलग अलग मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स अभी मार्केट में आ चुके हैं, राइट? एंड यू स्टार्ट यूटिलाइजिंग दोज मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स. आप लोगों ने बड़े बड़े क्रेन्स देखे होंगे. ये सब पहले हाथ से उठाया जाता था, अब ये सब चीजें मशीन से उठाई जाती हैं, और ह्यूमन का जो उसमें इंटरफेरेंस है वो काफी कम रहता है, जिससे एक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं. So a single person is lifting maybe tons of material, right? This is transferred from this place to some other. हम लोग जो मार्बल यूज करते हैं, ग्रेनाइट जो यूज करते हैं घर में, आपका जो किचन बना है उसका जो टॉप है दैट इज ग्रेनाइट. और मार्बल जो है हम लोग काफी बार अपने घर में भी लगाते हैं, फ्लोरिंग के लिए यूज करते हैं. दैट कम्स फ्रॉम राजस्थान, कोटा. कोटा में उसका ड्रिलिंग होता है, कटिंग होता है, सब कुछ होता है, एंड देन दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोटा टू महाराष्ट्र, मे बी टू अवर पुणे. तो ये जो भी रहता है ये मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स के थ्रू होता है. 4-व्हीलर कंपनीज कहीं और बनती है और वो बड़े बड़े वैगन्स में आती है यहाँ पे, और यहाँ पे डिलीवर किया जाता है. सो अगेन दैट इज अ मटेरियल हैंडलिंग फैसिलिटी. प्लांट लेआउट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट एंड हाइब्रिड लेआउट. कैपेसिटी प्लानिंग, कितना आपको बनाना है, व्हाट इज द डिमांड एंड हाउ मच यू विल प्रोड्यूस डेली, दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटी प्लानिंग. ये सब चीजें आप लोगों को बहुत जरूरी है. दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट इन डिटेल. Now, there are some ethical issues which you need to take care as a operations manager or OSCM manager या supply chain manager. सबसे पहला है चाइल्ड लेबर. चाइल्ड लेबर किसी भी हालत में पर्सन बिलो 18 इयर्स को आप अपने कंपनी में जॉब नहीं दोगे. दैट इज एथिकल. दैट इज एथिकल कि आप एथिक्स फॉलो कर रहे हैं, कि आप किसी भी चाइल्ड लेबर को अपने यहाँ पे लेबर बोल के नहीं यूज कर रहे हैं. चाय की दुकान पे हम लोगों ने देखे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे आपको चाय ला के देते हैं, राइट? तो दैट is really wrong, unethical practice उसको कहते हैं. Fair and timely wages. Fair wages means जितना वेज देना चाहिए as per the government norms, and टाइम पे आप उसको दे रहे हो. So that is again ethical issues. Worker safety. Worker safety. I have faced this issue. I was production manager in one of the companies in Ahmednagar, right? At that time, we used to lift some part. We used to lift some part through crane, right? So हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा हुआ था कि again a contract labor, he was sitting on that crane, और वो क्रेन खराब हो चुकी थी. उसका सेंसर जो था it was not working. So the moment he I don't know, somehow he goes there and my shift was over. It was almost 5 o'clock. मैं अपनी शिफ्ट खत्म करके गेट की तरफ जा रहा था, and they have started working on that crane. तो वो बच्चा वहां पे था, मेंटेनेंस इंजीनियर, वो वहां पे खड़ा था, बाकी के मेंटेनेंस की टीम वहां पे खड़ी थी, और वो बाई चांस उस क्रेन के ऊपर चढ़ गया, एंड दैट क्रेन स्टार्टेड मूविंग. क्योंकि उसका सेंसर खराब था तो उसको कोई भी
लाइसेंस मिला तो वो ऊपर ऊपर जाने लग गया। ऊपर जाते समय उसके ऊपर एक ये रहता था, रूफ रहता था, और वो बच्चा उसके बीच में क्रश हो गया। क्रश हो गया मतलब उसका बैकबोन टूट गया, और उसका जो बेल्ट रहता था उसके इसमें उसके उंगलियां सारी की सारी फंस गई। सो उसकी सारी उंगलियां चली गई एंड उसकी बैकबोन टूट गया। एंड दैट हैपेंड व्हेन आई वाज ऑन द गेट। सो समबडी कॉल्स ऑन द गेट एंड आई वाज अबाउट टू लीव द फैक्ट्री, बट उस समय कॉल आया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, एंड देन अगेन वी रश टू द प्लेस. So I and my friend was there when we completed our shift. But being a manager or being a production person, वो मेरा responsibility था कि उसका safety देखना चाहिए था, या फिर that was the responsibility of a maintenance manager कि उसका safety देखना चाहिए था। तो फिर उसको compensation देना पड़ा, फिर कोर्ट में थोड़ा सा केस वो चालू रहता है, उसमें फिर उसको क्या गलत हुआ था, क्या सही था, वो सब प्रूव करना पड़ता है। एंड these are all points of worker safety. तो ये सब चीजें हम लोगों को याद रखनी पड़ती है कि सबसे पहले ह्यूमन सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट मोर देन अ प्रोडक्ट। किसी को कुछ हार्म नहीं होना चाहिए। मेनी टाइम्स वर्कर वर्क्स ऑन अ मशीन जो घूमता है फास्ट, और उसमें से ऑयल स्पिल होता है काफी बार, तो ऑयल आपके आंखों में भी जा सकता है। सो वेदर दैट पर्सन इज वेयरिंग सेफ्टी गॉगल्स, वेदर द पर्सन इज वेयरिंग गम बूट्स, जहाँ पे मेटल्स, काफी बार मेटल बर रहता है जो आपके पैर में घुस सकता है, तो सेफ्टी शूज यू नीड टू, और गम बूट्स आपने पहनना बहुत जरूरी है। केमिकल में अगर आप हाथ डाल रहे तो यू नीड टू वेयर स्पेशल ग्लव्स। इन्वायरमेंटल इश्यूज, जो भी आपके यहाँ का रॉ मटेरियल है वो आप इन्वायरमेंट में नहीं फेंक रहे हैं। न्यूक्लियर है, काफी सारे फर्नेसेस से जो बाहर आता है, न्यूक्लियर वेस्ट अभी डिकम्पोज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, राइट। सो जो डेवलप कंट्रीज है, व्हाट दे आर डूइंग, दे पैक इट इनटू बॉक्सेस एंड दे डंप इट वेयर इन डेवलपिंग कंट्रीज और पुअर कंट्रीज। उनको पैसे कुछ दे देते हैं, वहां का कोई कॉन्ट्रैक्टर उसको इंपोर्ट कर लेता है और अपने यहाँ पे गड्ढा खोदते हैं उसमें डाल देते हैं, बट देन दैट रेडिएशन नेवर स्टॉप्स। ये जितने भी रेडियो एक्टिव मटेरियल रहते हैं उनका हाफ लाइफ जो रहता है, इट इज इन हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। यूरेनियम का हाफ लाइफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 235 इयर्स। मतलब यूरेनियम का एक पार्टिकल कंप्लीटली डिफ्यूज होने के लिए, उसकी एनर्जी खत्म होने के लिए 235 इयर्स लगते हैं। उसका रेडिएशन उस समय तक निकलते रहता है, एंड दैट रेडिएशन अफेक्ट्स आवर बॉडी सिस्टम, दैट रेडिएशन अफेक्ट्स आवर सेल्स, दैट रेडिएशन अफेक्ट्स आवर नॉर्मल वर्किंग, राइट। तो रेडिएशन से बचने के लिए आपने प्रॉपर कपड़े पहने हैं कि नहीं। व्हेन यू आर गोइंग वेरी नियर टू रेडियोएक्टिव मटेरियल, वहां से आने के बाद आपकी बॉडी का चेक होना जरूरी है, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना जरूरी है। एवरी मंथ और एवरी 6 मंथ्स आपका मेडिकल चेकअप होना जरूरी है। एंड ऑल दीज इश्यूज कम्स अंडर environmental issues as well as worker safety. Then comes cultural and social issues. Cultural and social issues में कंपनी के आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो सोशल इश्यूज में आ सकते हैं, कि कंपनी से निकलने वाला जो गंदा पानी है वो उनके पानी को खराब कर रहा है क्या, ग्राउंड लेवल के पानी को खराब कर रहा है क्या, दैट बिकम्स अ सोशल इशू। क्योंकि ये पानी अगर मैं डायरेक्टली छोड़ देता हूँ विदाउट एनी ट्रीटमेंट, राइट, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट रहता है, ईटीपी, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, इसको जो पानी निकलता है गंदा पानी कंपनी से, केमिकल्स आप लोगों ने देखे होंगे काफी बार वो नाले में बहते रहते हैं, राइट, यू माइट हैव सीन, उसमें से फोम निकलता रहता है। दैट इज अनट्रीटेड वाटर एंड दैट इज अनएथिकल। वो आपने डायरेक्ट पानी के सोर्स में छोड़ दिया, वो पानी का सोर्स पूरा गंदा हो गया। वो पानी का सोर्स हम लोग वो पर्कुलेट भी हो रहा है जमीन में, तो जमीन में जो साफ पानी रहता था वो भी पानी खराब होने लग गया। और हम लोगों ने क्या किया, या किसान ने क्या किया, उधर बोरवेल डाला और वो पानी निकाल के वो अपने पौधों को दे रहा है, वो पौधों से फ्रूट में चला गया या फिर पौधों से वो वेजिटेबल में चला गया, दैट वेजिटेबल वी ऑल आर ईटिंग। सो ये पूरा का पूरा इन्वायरमेंटल इशू है, ये पूरा इन्वायरमेंटल साइकिल खराब हो गया है और ये एक सोशल इशू बन जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है। कल्चरल इश्यूज में फैक्ट्री के जो लोग फैक्ट्री में आते हैं वो अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग एरिया से आते हैं, तो उन सब ने अच्छे से रहना चाहिए, उन सब ने हार्मनी वहां की जो है वो पीसफुली रखनी चाहिए। सो दोज आर एथिकल इश्यूज इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट, राइट। नाउ कम्स क्वालिटी। क्वालिटी हम लोग अभी बात कर रहे थे कि क्वालिटी क्या होती है, कैसी होनी चाहिए। किसी भी ऑपरेशंस में या किसी भी प्रोडक्शन में या किसी भी सर्विस कंपनी में क्वालिटी डिफाइन करना बहुत जरूरी हो जाता है। बट अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि फॉर द सर्विस कंपनीज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मार्क द क्वालिटी, और
डिसाइड द क्वालिटी। डॉक्टर्स का क्वालिटी क्या होना चाहिए? अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कि जो भी वो ट्रीटमेंट देंगे उसमें से पेशेंट ठीक होने चाहिए, बट इनकेस कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी पेशेंट में थे, किसी ने डॉक्टर ने उसको ट्रीट किया बट देन वो ठीक नहीं हो पाए, सो वेयर द क्वालिटी, हाउ द क्वालिटी विल बी decided in such cases, right? So we talk about quality revolution. अंडरस्टैंड, पुराने जमाने में एक सब हाथ से होता था, जो हम लोगों ने कल भी देखा, वहां पे क्वालिटी उस समय ऐसा कुछ होता ही नहीं था, राइट? फिटनेस फॉर यूज और पर्पस इज अ डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी दैट इवैल्यूएट्स हाउ वेल प्रोडक्ट परफॉर्म इंटेंडेड यूज। ये किसने दिया था? जोसेफ जोरान ने दिया था। ये था 24 दिसंबर 1904 में, और ये कंसेप्ट वहां से फिर शुरू हुआ, राइट? फिटनेस फॉर यूज, जो भी प्रोडक्ट आपके यूज के लिए फिट है, हम लोग उसको कहेंगे कि इट्स अ क्वालिटी प्रोडक्ट, बट देन दिस इज नॉट अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी, राइट? इसमें भी फिर एडिशंस होते रहे। क्वालिटी शुड बी एम्ड एज नीड्स ऑफ कस्टमर्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हम लोग टूथब्रश यूज करते हैं, टूथब्रश का क्वालिटी क्या होना चाहिए? स्टार्ट थिंकिंग। चाय पीते हैं हम लोग, व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ अ टी? हम लोगों ने चाय के लिए 15 रुपीज दिए, चाय मैंने कंज्यूम की, चाय में यूज होने वाला मिल्क अच्छा होना चाहिए, चाय का टेस्ट अच्छा होना चाहिए, चाय शुड सेटिस्फाई माय नीड, राइट? इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा था नीड डिमांड, राइट? नीड बेस्ड डिमांड। तो नीड जो रहती है, जो हमारी जरूरत रहती है, उसको अगर हम लोग फुलफिल कर पाए, वो सेटिस्फाई हो गई, so that becomes that is very close to the definition of a quality. So what Edward Deming is saying, it is aimed at needs of the customer. Then comes quality as an umbrella concept. Umbrella matlab complete. Umbrella you might have seen, right? In rainy days अभी आप लोग यूज कर रहे होंगे umbrella, females अपने बैग में रखते हैं। Quality as an umbrella concept which integrates whole spectrum of all improvements initiatives. मतलब जो भी improvements हम लोग कर रहे हैं, उसको हम लोग quality umbrella में रख रहे हैं, right? इसमें एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है टाटा नैनो का, कॉस्ट रिडक्शन के लिए टाटा नैनो। सो क्वालिटी तो है उसमें, बट इक्वली इट इज सेटिस्फाइंग द कस्टमर्स नीड। कस्टमर्स नीड क्या है? मुझे कम से कम पैसे में 4 व्हीलर खरीदनी, बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड 5 लाख 10 लाख। सो टाटा नैनो ने 1 लाख में नैनो देना शुरू किया, उसका प्राइस बढ़ गया है बिकॉज ऑफ नॉन अफोर्डेबल रॉ मटेरियल, राइट? सो उसमें वैल्यू एनालिसिस आ गया। स्मार्टफोन्स में वैल्यू एनालिसिस क्या है? कल भी हम लोगों ने वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग के बारे में बात की। धीरे धीरे करने लगते हैं। टूथब्रश के टूथपेस्ट के बारे में मैंने बात की थी कि द कवर ऑफ टूथपेस्ट, जिसमें टूथपेस्ट रहता है, वो पहले एल्यूमिनियम फॉइल का आता था, अब वो आ गया है इसका प्लास्टिक का। पहले जो ये इलेक्ट्रिक वायर्स रहती थी, आप जो अभी पोल पे देखते हैं, ये एल्यूमिनियम की है, पहले कॉपर की रहती थी। समझ में आ रहा है? सो ये वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू को एनालाइज किया कि इतना महंगा कॉपर वायर यूज कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक pass हुई है, but we are unable to afford the copper because price of copper is very high. So copper को replace किया एल्यूमिनियम से because एल्यूमिनियम is very cheap. हम लोग घर में जो हमारा प्रेशर कुकर रहता है, that is एल्यूमिनियम। काफी बार हम लोग जो पैन्स यूज करते हैं, that is एल्यूमिनियम। We utilize एल्यूमिनियम many times in our house. काफी बार हम लोग बस में जा रहे हैं तो बस का जो फ्लोरिंग है, that is एल्यूमिनियम। आप लोग कभी ध्यान से देखोगे तो काफी जगह पे एल्यूमिनियम के ही प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। This all comes through value analysis and value engineering. ये क्वालिटी से डायरेक्टली रिलेटेड रहता है। नाउ आप लोग मुझे बताइए कि व्हाट क्वालिटी इज। आपके लिए क्वालिटी का डेफिनेशन क्या है? एनीवन प्लीज, व्हाट इज क्वालिटी? Sir, quality is defined as an it is included in customer satisfaction. ओके मतलब कोई प्रोडक्ट आपने मार्केट से खरीदा और वो आपको से अच्छा लगा, Yes. तो प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है, ऐसे आप कह रहे हैं, बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. आपने किसी स्कूल में एडमिशन लिया या किसी कॉलेज में एडमिशन लिया और वहां पे आपको मार्क्स अच्छे मिले, आपको काफी नॉलेज मिला, तो उस इंस्टीट्यूट का क्वालिटी अच्छा है। Yes, sir. बराबर है? Yes, sir. So in what it is directly related to the value of the product. अब जितने पैसे उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? अब आप लोग बोलोगे कि 10 रुपए में मुझे ना आज पूरे दिन का एंजॉयमेंट होना चाहिए,
बट देन 10 रुपीज में उस वैल्यू का 10 रुपीज के वैल्यू का आपको कुछ मिलेगा विच विल सेटिस्फाई एंड विच विल मेक योर होल डे बेटर is bit difficult, right? So again, quality is related to price also. Quality is related to price also. काफी चीजें priceless रहती है, काफी चीजें means your relationship with your friends, your family, that gives you satisfaction. So you talk about good quality relationship, right? I'm living a good quality life. So ये quality term जो है उसको समझना बहुत जरूरी है. Its definition changes from product to product, from place to place, and where it is used. वो उस समय के ऊपर वो क्वालिटी का डेफिनेशन चेंज हो सकता है. हम लोग इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के बारे में अगर बात करें तो क्वालिटी उसका जो भी स्पेसिफिकेशन दिया है, जो भी डायमीटर होना चाहिए, जो मटेरियल यूज होना चाहिए, उस मटेरियल की प्यूरिटी. अब क्वालिटी ऑफ द गोल्ड, क्वालिटी ऑफ गोल्ड 22 कैरेट 24 कैरेट गोल्ड खरीदते हैं, बट उसमें भी काफी बार कॉपर या फिर कुछ और मिक्सिंग रहता है. तो हम लोग क्वालिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? हमें गोल्ड, मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज द डिजाइन एंड एवरीथिंग ऑफ दैट ऑर्नामेंट वाज वेरी गुड. इयररिंग्स मैंने अपने फ्रेंड के लिए लिए थे, तो वो इयररिंग्स बहुत अच्छे. सो डज दैट मीन दैट क्वालिटी इज गुड? नो, क्योंकि उसमें क्या मिक्स था मुझे भी नहीं पता, एंड इट वाज नॉट अ प्योर गोल्ड. उन्होंने मुझे फंसाया उसमें. सो क्वालिटी डेफिनेशन changes. Quality is positioned as an input which accelerates business improvements by shifting focus from inspection to quality control. So पहले जो था, पहले इंस्पेक्शन किया जाता था. इंस्पेक्शन मतलब प्रोडक्ट को देखा, अच्छा ठीक बना है, टेस्टेड, ओके, स्टैम्प. अब ये धीरे धीरे क्वालिटी कंट्रोल के अंडर आ गया, राइट? अब इसमें भी क्वालिटी और इंस्पेक्शन में भी आप लोगों ने एक चीज याद रखनी चाहिए कि how we test it. If you remember, I don't know whether I've discussed it with you or not. क्वालिटी चेक कैसे रहता है, इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है? आप लोग अगर बुलेट्स बना रहे हैं, आपकी कंपनी में बुलेट्स बन रहे हैं, तो उसका टेस्टिंग कैसे होगा कि वो बुलेट जो बना है वो बहुत अच्छा बना है? या फिर इफ यू आर मेकिंग अनब्रेकेबल ग्लास, तो उसका क्वालिटी चेक कैसे होगा, उसका टेस्टिंग कैसे होगा? इट डजंट मीन कि आप हर एक बुलेट चला के देख रहे हैं, या फिर आप हैंड ग्रेनेड्स बना रहे हो तो सारे के सारे हैंड ग्रेनेड्स के पिन निकाल रहे हो और आप फेंक रहे हो, पिन निकाल रहे हो एंड देन ओके, फूटा तो टेस्टेड, ओके, नहीं फूटा तो वो खराब है. बट देन व्हाट यू आर गोइंग टू सेल, राइट? तो उसमें भी क्वालिटी ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग वहां पे सैंपल टेस्टिंग करते हैं. Right. Now let us see definition of quality from various perspective. Customer के perspective से quality की definition अलग हो जाती है और manufacturer की इससे अलग हो जाती है. Quality is equals to maximum satisfaction. अभी जो जयश्री कह रही थी कि उनका अगर satisfaction हुआ, उनकी wants, needs fulfill हो गए, then that is a good quality product. External customers and internal customers concept. External and internal, external मतलब जो products करते हैं, we are external customers. इंटरनल कस्टमर मतलब कंपनी में एक डिपार्टमेंट से वो वर्क इन प्रोग्रेस दूसरे में जा रहा है, दूसरे से तीसरे में जा रहा है, तो ये पहले से दूसरे में गया मतलब पहले का कस्टमर है ये दूसरा डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट का कस्टमर है ये तीसरा डिपार्टमेंट. यहाँ पे भी इंटरनल, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल कस्टमर्स, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल. तो ये भी सेटिस्फाई होने चाहिए. ये नहीं कि मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि अरे ये प्रोडक्ट ठीक नहीं आ रहा है, इसमें ड्रिलिंग सीधी नहीं होती, इसका बर क्लीन नहीं रहता है, ये जो डेप्थ ऑफ ड्रिल है वो ठीक से नहीं कर रहे हैं, सो आई नीड टू रीवर्क ऑन इट, मेरा टाइम उसमें वेस्ट हो रहा है, माय आउटपुट ऑफ माय डिपार्टमेंट इज डिक्रीजिंग. बड़े बड़े कंपनी में हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर्स रहते हैं, राइट? सो एवरीबॉडी सीज दैट मेरे डिपार्टमेंट का आउटपुट ज्यादा रहना चाहिए, सो दे ऑलवेज ट्राई एंड फाइंड डिफेक्ट्स इन अदर्स दिस थिंग. मतलब उनके जो सप्लायर्स रहते हैं उनके डिफेक्ट्स निकालने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दे हैव टू प्रूव दैट दे आर सफरिंग बिकॉज ऑफ समबडी एल्स मिस्टेक. दैट इज इंटरनल कस्टमर्स कंसेप्ट. एक्सटर्नल कस्टमर्स, हम लोग जो अभी मार्केट से जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, वी ऑल आर एक्सटर्नल कस्टमर्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. Then what they have said, the last line, that is customers are ultimate judge of a quality. Yes, आप लोग ही जज कर सकते हो उसका क्वालिटी, भले ही उसमें काफी सारे डिफेक्ट है, बट आप सेटिस्फाई हो गए मतलब आप सबको कह रहे कि नहीं, इट्स अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. The way I was talking to you कि जो मैंने गोल्ड खरीदा है, जो इयररिंग्स खरीदे हैं, जो भी हम लोगों ने खरीदा, वो मुझे अच्छा लगा, बट उसमें वो दैट वाज नॉट प्योर, इम्प्योर था वो, बट मुझे अच्छा लगा, सो क्वालिटी वाज गुड. बट when I
ट्राई एंड सेल इट अगेन, मैंने उसको वापस से बेचने की कोशिश की, तो वो मुझे पता चला कि दैट वाज नॉट ऑफ 22 कैरेट आल्सो, वो 18 कैरेट या कुछ का था। सो मुझे उसमें पैसे कम मिले, तो क्वालिटी वहां पे हैम्पर हुई थी जो मुझे नहीं पता चला। सो कुछ क्वालिटी के नॉर्म्स ऐसे रहते हैं कि विच कैन बी सीन एंड डिसाइडेड एंड विच कैन नॉट बी सीन एंड कैन नॉट बी डिसाइडेड। क्वालिटी डिफर्स। मैन्युफैक्चरर्स व्यू में क्या आता है, सप्लाई बेस्ड एंड कंसर्न विद इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। मैन्युफैक्चर क्या समझता है कि क्वालिटी मतलब अभी वेट ऑफ शुगर स्पेसिफिकेशंस कुड बी 500 ग्राम्स विद टॉलरेंस ऑफ 10 ग्राम। मैन्युफैक्चर क्या सोच रहा है कि आपने आधा किलो का चीनी खरीदा, बट वो आधा किलो में चीनी 499 ग्राम से थी, 1 ग्राम कम था या 10 ग्राम कम था, 490 ग्राम शुगर आपको मिला है। सो दैट टॉलरेंस को वो क्वालिटी से मैच करने की कोशिश करता है, या फिर जैसे मैंने अभी बताया कि इट मे बी एप्लीकेबल टू गोल्ड एंड सिल्वर आल्सो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वालिटी। हम लोगों ने काफी सारी चीजें हम लोग ये सब सीख रहे हैं। दिस इज अ इंट्रोडक्टरी यूनिट। इसमें पूरा का पूरा ऑपरेशन सप्लाई चेन के बारे में आपको बताया जा रहा है, इसीलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल प्रोसेसेस, व्हाट ऑल टर्म्स, व्हाट ऑल। कल भी हम लोगों ने 2 टर्म्स नए सीखे थे, वन वाज लीन एंड वन वाज जस्ट इन टाइम, राइट। लीन प्रोडक्शन आपने पहली बार सुना होगा, नहीं सुना तो काफी बार होगा, बट उसका मतलब आपको कल पहली बार समझ में आया। व्हाट इज लीन? रिमूवल ऑफ व्हाट? वेस्टेजेस। अब ये वेस्टेज कैसे भी हो सकते हैं वो भी हम लोग देखते हैं। देन दूसरा एक टर्म्स आपने सीखा था, दैट इज जस्ट इन टाइम। जब चाहिए तब आप उसको मंगा रही, एंड जस्ट इन टाइम इज रिलेटेड टू व्हाट? और एक नया टर्म सीखा, पुल एंड पुश। पुल एंड पुश, आप पुल कर रहे हो मतलब आप मार्केट में जा रहे हो, कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे हो, इट मींस यू आर पुलिंग इट। कुछ मार्केट में जा रहे हो, जो प्रोडक्ट आपको नहीं चाहिए था वो भी आपने खरीद लिया, दैट इज पुश। मॉल में जब जाते हो तो काफी सारी चीजें वहां पे पुश के लिए रखी जाती है, प्रोडक्शन बना के रखा हुआ है उन्होंने, और वो आपके सिर में डालने की कोशिश करते हैं कि ये बहुत अच्छा, आप ले लीजिए। बिस्किट सामने ही रखे रहते हैं, चॉकलेट सामने ही रखे रहते हैं। आप लोग जहाँ पे लाइन बना के खड़े रहते हैं फॉर बिल काउंटर, राइट, उसके आसपास कुछ ऐसी टेम्पटिंग चीजें रहती है कि आप खड़े खड़े सोचते हैं अब मैं क्या करूं। ओ वाओ, चॉकलेट इज देयर। आप लोग उसको उठा लोगे, उसको कहोगे कि इसका बिल बना देना, या रैपर यू विल प्रिजर्व एंड यू विल ईट द चॉकलेट व्हाइल स्टैंडिंग। होता है ऐसे? Yes, sir. दैट इज पुश, दैट इज पुश। वहां पे नेल कटर रहते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीजें रहती हैं जो आपको लेनी नहीं रहती तो भी आप खरीद लेते हो, दैट इज पुश। और पुल क्या है? जो आपको चाहिए, आप लिस्ट बना के घर से निकले थे, आपने वो चीजें ली, दैट इज पुल। सो पुल मीन्स यू आर पुलिंग मटेरियल, एंड पुश, कंपनी इज पुशिंग दैट मटेरियल। कंपनी बना रहे, चाइना पुश सिस्टम बनाते हैं, बल्क में बनाते हैं और मार्केट में फेंक देते हैं, चला चला नहीं चला फेंक दो, राइट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। टोयोटा फेमस प्रोडक्शन सिस्टम है। टोयोटा का वर्ल्ड फेमस कार का इंजन है। टोयोटा कार्स अभी भी मार्केट में चल रहे हैं, दे आर बेस्ट एंड देयर परफॉर्मेंस इज बेस्ट। आपने ये बात सुनी है नहीं सुनी है? टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, टोयोटा कार्स, यू नो और यू डोंट नो? No, sir. अच्छा, टोयोटा अगेन जापानीज टर्म, जापानीज कल्चर से ये आया हुआ है। Toyota production system was developed to improve quality, productivity, and is directed by philosophy that is central to the Japanese culture: elimination of waste, lean. Elimination of waste, lean. इसमें एक और टर्म आता है जो मैं अभी आपको बताता हूँ, एजाइल। एजाइल आपने सुना होगा, एजाइल मीन्स टू स्पीड अप, टू स्पीड अप, improve your agility। कहते हैं ना, improve your agility। काफी बार कहते हैं कि यू आर नॉट वेरी एजाइल, मतलब आप जो काम करते हैं, आप जिस तरीके से बिहेव करते हैं, दैट इज नॉट वेरी एजाइल, सो दैट इज नॉट वेरी fast, right? That is agile. Waste as defined by Toyota President Fijo Chow as anything other than minimum amount of equipment. Waste, what is waste? Anything other than minimum amount of equipment, material, parts and workers working time which are absolutely essential to production. मतलब जो चाहिए उसके अलावा जो भी कुछ रहेगा, that is a waste for you. There is no room for surplus or safety stock. No safety stock is allowed because you cannot
यूज इट नाउ, जस्ट इन टाइम यहाँ पे आया। तो वो जो सेफ्टी स्टॉक कहते हैं, व्हाट इज सेफ्टी स्टॉक? व्हाट इज सेफ्टी स्टॉक? यस, व्हाट इज सेफ्टी स्टॉक? आपके घर में भी सेफ्टी स्टॉक रहता है हमेशा। हम लोग कल बात कर रहे थे वीट। जयश्री, आपके घर Yes, में sir. कितनी कितनी बोरियां वीट की है दीवार पे लगा के रखी हुई है, देखो। Yes, sir. हाँ, दैट इज सेफ्टी स्टॉक। चीनी, आपके घर में 10 किलो चीनी, महीने में आपको लगती है सिर्फ 4 या 5 किलो चीनी, आप 10 किलो लेके आते हो, सो एक्स्ट्रा 5 kgs इज देयर, दैट इज सेफ्टी स्टॉक। Yes, sir. But understand, your parents or your family has invested money into it. अब उसमें पैसा लगाया, हम लोग इतनी बारीक चीजें नहीं सोचते हैं, बट जब हम लोग कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यही 5 किलो वहां पे 5 टन में रहता है, 5 टन, 10 टन, 20 टन। उसका प्राइस देखो कितना रहता है, मतलब कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट रहता है। उसमें से अगर वो Yes. कुछ खराब हो गया, सो दैट इज अ जीरो वैल्यू मनी, मतलब मेरा पैसा खर्च हो गया। सो दे स्टार्टेड यूटिलाइजिंग दीज टर्म्स एवरीवेयर, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। जहां पे भी उनको दिख रहा है कि ये वेस्ट है, उसको निकाल रहे हैं। टाइम वेस्ट हो रहा है, निकाल दो। टाइम को वेस्ट नहीं होने देना है, बिकॉज टाइम इज मनी इन ऑर्गेनाइजेशंस। हम Sir लोग टाइम, means minimization of waste, na? यस, मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्ट। एलिमिनेशन मीन्स मिनिमाइजेशन। एलिमिनेशन मतलब निकालना, निकालना मतलब इट इज एज गुड एज कम करना, क्योंकि हम लोग पूरा का पूरा वेस्ट निकाल नहीं सकते, सो हम लोग उसको कम करते हैं। सो व्हाट यू सेड इज मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्ट, करेक्ट। सो जापानीज का ये था कि दे नेवर सिट इन देयर केबिन्स। लाइक वंस यू बिकम अ मैनेजर, इफ यू वांट टू रियली बिकम अ गुड मैनेजर, आपने एक काम करना है, आपने कभी भी अपने केबिन में नहीं बैठना है इफ यू आर इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। व्हाई? व्हाई? बिकॉज यू विल नेवर अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ शॉप फ्लोर। अगर शॉप फ्लोर पे कुछ प्रॉब्लम आता है, या फिर आपकी मार्केटिंग टीम अच्छा कुछ नहीं कर रही है, या फिर आपके कंपनी का आउटपुट कम हो रहा है, या फिर उसमें क्वालिटी के कंप्लेंट्स आ रहे हैं, तो यू कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम सिटिंग इन एसी रूम। सो जापानीज टेक्निक इज टू गो ऑन द शॉप फ्लोर, स्टैंड देयर एंड स्टार्ट थिंकिंग व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, व्हाई द प्रोडक्ट इज गेटिंग रिजेक्टेड, व्हाई द कस्टमर्स आर कंप्लेनिंग अबाउट द प्रोडक्ट, राइट? Yes, sir. ये सब चीजें जापानीज करते हैं, और ये सब चीजें हम लोग अभी धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहे हैं। जापानीज का जो इंजन है, जापानीज मतलब सॉरी टोयोटा का जो इंजन है, वो वर्ल्ड क्लास इंजन है, वर्ल्ड क्लास इंजन है। उसके पीछे का एक स्टोरी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हाउ हाउ पीपल वर्क अंडर स्ट्रेस। अभी आप लोग कहोगे कि सर आप लोग हमारे पीछे लगे रहते हैं, यू ऑल हरास अस, राइट? कुछ बच्चे यूज करते हैं इस टर्म को कि नहीं कॉलेज हरास करता है, असाइनमेंट मांगता है, ये करता है, वो करता है, ये टाइम पे दो, वो टाइम पे दो, सर्टिफिकेट्स दो, ये सेशन करो, वो सेशन करो, सुबह उठ के 6 बजे मोबाइल सर का सेशन करो, ये तो कम्प्लीटली हरासमेंट है। बट देन हाउ पीपल वर्क इन स्ट्रेस, उसका एक एग्जांपल देता है, हाउ दिस टोयोटा इंजन कम्स इनटू द पिक्चर। जब ये टोयोटा इंजन बनाना था, तो इसके जो ओनर थे वो आए, पीजियो चाओ, और उन्होंने टीम ऑफ इंजीनियर्स को कहा कि मुझे वर्ल्ड क्लास इंजन चाहिए, वो आपने बनाना है। एंड ही गेव देम 6 months। उन्होंने कहा कि मैं 6 महीने के बाद आऊंगा और मैं ये इंजन देखूंगा। 6 महीने के बाद जब वो आए, उन्होंने इंजीनियर्स को पूछा कि कुछ बना क्या आपका, कोई इंजन बना पाए आप लोग? सो इंजीनियर सेड नो, हम भी नहीं बना पाए, वी आर स्टिल इन अ थिंकिंग प्रोसेस कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ही सेड ओके फाइन, आई गिव यू अनदर 2 months, तो आप बना लो, अच्छी बात है। So again after 2 months meeting was there, again he asked कुछ बना क्या? Again same thing they answered कि कुछ भी नहीं बना। Then he was very angry, और उसको थोड़ा इरिटेशन हुआ कि what is this nonsense, they wasted my 8 months and I'm giving them salary। मतलब you are a design engineer and you are unable to design a good engine, and there was a team of engineers। Then finally in a meeting he declared कि अगर अगले 1 महीने में आप लोगों ने मुझे इंजन नहीं बना के दिया, तो आप लोगों की सबकी नौकरी चली जाएगी। समझ में आ रहा है? एंड विद इन few days only they come out with this Toyota engine, few days। यहाँ पे स्ट्रेस ने काम किया, everybody was under pressure, everybody was under pressure कि अगर मैंने इंजन सॉरी that car engine I could not develop or I could not design,
then my job will be at stake. So they manufactured world class Toyota engine, मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ. अभी भी मार्केट में टोयोटा का इंजन बेस्ट है. टोयोटा का इंजन बेस्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज उसका जो एफिशिएंसी है, इंजन में कंबशन होता है. कंबशन होता है मतलब फ्यूल को जलाया जाता है, और वो जब जलता है उससे जो निकलने वाली गैस है वो तो एग्जॉस्ट से बाहर आ जाती है, बट वो जो टेम्परेचर और जो प्रेशर रहता है उससे पिस्टन्स मूव होते हैं, और वो पिस्टन्स जब मूव होते हैं तो आगे चलती है, राइट. तो वो उसका जो परफॉर्मेंस है वो सबसे अच्छा है अभी भी मार्केट में. बट वो कैसे बना? अगर उसने धमकी नहीं दिया रहता तो वो बना पाते क्या? नहीं. No. इसीलिए हम लोग वी नेवर थ्रेट यू, बट वी ऑलवेज वांट यू टू वर्क ऑन टाइम. मतलब आपको जो डेडलाइन दी है उसको फॉलो कीजिए. व्हाई एवरी टाइम यू रिक्वेस्ट अस कि सर मैं बीमार था, मुझे 2 दिन और दीजिए. सर मेरे घर में प्रॉब्लम था, मुझे और 2 दिन दीजिए. सर आई वाज बिजी, मुझे और 1 दिन चाहिए. सर आई वाज ऑन जॉब, मुझे ये नहीं हो रहा था, मेरा ये प्रॉब्लम था. एंड देयर आर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. सी वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी हैव एन हैबिट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस. जिस दिन आप अपने आप से कहोगे कि नहीं आज से मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगा, मैं रात भर लिख के डोंट यू थिंक एक रात भी अगर जगे तो आपका आधा असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा? Yes, sir. मत सोना एक दिन. 24 घंटे आप नहीं सोए, आपकी बॉडी क्या, आपके सीधा ऊपर नहीं चले जाओगे? बट देन यू डोंट वांट टू लूज योर कंफर्ट. आप उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हो, एंड दैट्स व्हाई दिस इज हैपनिंग. एंड ऑल द डेडलाइंस यू मिस, ऑल द डेडलाइंस, एंड देन यू गिव अ सॉरी मेल, प्लीज एक्सक्यूज मी, प्लीज अलाउ मी टू. ये आप लोग अपने आप से दगा कर रहे हो. The other day also I was telling you, compete with yourself. अगर वो आप लोग करोगे नहीं तो आप लोग आगे लाइफ में कभी नहीं बढ़ोगे. अपने आप से कंपटीशन रखो कि नहीं मुझे 6 बजे के सर के लेक्चर सुनने हैं, बिकॉज मुझे उससे कुछ तो भी मिलेगा. दो सर डू नॉट टीच वेरी गुड थिंग्स, बट जो भी है मैं सुनूंगा एंड आई गेन समथिंग आउट ऑफ इट. या फिर मुझे अभी कल प्रोजेक्ट का टॉपिक देना है तो मैं रात भर आई रीड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अवेलेबल ऑन गूगल, और आई सर्व गूगल कि नया क्या मिल रहा है उसमें, कौन से नए टॉपिक्स हैं, क्या है, एंड आई एटलीस्ट गेट 2 टॉपिक्स. और वो आपने कल दिखाया. नहीं सर सॉरी मैं कल सो गया था, मैं आज लेट उठा, मेरा अलार्म नहीं बजा सर, मुझे आदत नहीं है सुबह 6 बजे उठने की, सर मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरे घर वाले ऐसा है, मेरा वो है. बस. काफी सर लोग ऐसा नहीं है कि आप अच्छा टीच नहीं कर रहे हो, आप बहुत अच्छा टीच कर रहे हो. या थैंक यू जयश्री. नहीं आई वाज जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. मैं एक Yes, एग्जांपल sir. कोशिश कर रहा था कि कुछ भी रहे, बट देन यू शुड मेंटेन योर ओन थिंग्स. सी अभी तो हम लोग आपके टीचर्स हैं, तो हमारे लिए तो आप हमारे बच्चों के जैसे ही हो. हम लोग आपको समझ लेंगे. वी विल गिव यू हैंड 2 more days, we will give you 5 days. बट अगर आप टोयोटा की कंपनी में काम कर रहे रहते तो उन्होंने एक भी दिन आपको ज्यादा नहीं दिया रहता. करना है करो, नहीं तो गो. हायर एंड फायर का जो टेक्नोलॉजी है, हायर एंड फायर का जो कंसेप्ट है वो वहां पे रहता है. ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा ही रहता है. इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग इन Yes, sir. फर्स्ट टाइम आपने एक्सक्यूज दिया, सेकंड टाइम दिया, थर्ड टाइम भी आपने कहा कि नहीं सर मेरा प्रेजेंटेशन तैयार नहीं है, आई वाज बिजी, आई वाज बिजी इन माय सिस्टर्स मैरिज, आई वाज बिजी इन दिस, आई वाज बिजी इन दैट. कुछ नहीं हो सकता आपका. उसको वो कहेंगे कि आप जाइए हम लोग दूसरा ले लेंगे, बिकॉज कंपटीशन इज देयर. इतनी Yes, बड़ी sir. पॉपुलेशन है, इतने लोग पे है, एक पोस्ट के लिए यहाँ पे आज 100 लोग 1000 लोग नहीं. तो आप अपने आप को कैसे अलग दिखा सकते हैं? एक ही चीज आपको अलग दिखा सकती है कि यू शुड बी सिंसियर विथ योरसेल्फ एंड नो वन एल्स. काफी आपने वीडियोस आप लोग लाइक करते हो, थम्स अप करते हो, जहाँ पे दिखाया जाता है कि रात के 12 बजे भी सिग्नल पे कोई नहीं है, रेड लाइट लगी है तो भी आपने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी या फिर किसी ने अपनी कार खड़ी करके रखी है. रेड लाइट कंप्लीट होता है 30 से आपने अपनी गाड़ी चालू की और आप चले गए, और ये ऐसा कुछ वीडियो आता है तो आप लोग थम्स अप करते हैं. यस और नो? बट जस्ट थिंक अबाउट दैट पर्सन हु हैज फॉलोड द ट्रैफिक रूल. उसने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि आई विल नॉट ब्रेक द ट्रैफिक रूल. नॉट ब्रेक मींस नॉट ब्रेक. उससे क्या होता है? रोड में तो कोई भी नहीं था इसलिए मैं चला गया. नो, दिस इज अनएथिकल. तो ये सब चीजें जब करोगे ना तब ये अच्छी चीजें आती हैं. जापानीज आर नंबर 1 इन वर्ल्ड. ट्रस्ट मी, Yes, जापानीज sir. आर नंबर 1 इन वर्ल्ड. I was small that time. So एक जापानीज वर्कर जापान से यहाँ पे आया था किसी कंपनी में. It was टाटा मोटर्स और समवेयर, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बट वो न्यूज़पेपर में वो आर्टिकल आया था.
तो वो आर्टिकल में ऐसा लिखा था कि उसने अपने भाई को लेटर लिखा था यहाँ से, एंड ही सेड कि यू कम डाउन टू इंडिया एंड वर्क हियर, बिकॉज इंडिया में काफी सारी छुट्टियां रहती है। यहाँ पे 54 संडेज तो रहते ही है, उसके साथ साथ काफी सारे यहाँ पे फेस्टिवल्स रहते हैं जिसमें 10-10, 20-20 दिन छुट्टियां रहती है। सो हाफ ऑफ द ईयर इंडियंस डू नॉट वर्क। दैट वाज हिज कमेंट। बट वो उसने किसको लिखा था? अपने भाई को लिखा था। उसने क्या कहा था कि इंडियंस डू नॉट वर्क। ये सोचने वाली बात है या नहीं है सर, इसलिए हमारे तो हमारे कोई नेताजी का एमआईडीसी में। बर्थडे है तो छुट्टी, 15 अगस्त है तो छुट्टी। सर आज 15 अगस्त था ना, आज मैंने पढ़ाई नहीं की। क्यों? 15 अगस्त था ना सर, इंडिपेंडेंस डे। 26 जनवरी थी सर, रिपब्लिक डे था, मैंने आज कुछ नहीं किया। आज छुट्टी रहती है ना सर, कॉलेज में क्यों बुला रहे हैं आप? या फिर आपके और बॉस ने सर नहीं दी? एमआईडीसी में भी वो लोग ही ज्यादा है, Pardon? यस यूपी। जयश्री, क्या बोल रहे हैं? एमआईडीसी एरिया में भी वो लोग ही ज्यादा है, मीन्स शॉप फ्लोर पे। और क्यों ज्यादा है समझने की कोशिश कीजिए। बिकॉज they have developed themselves in that manner. जापान पे 3 बार प्रॉब्लम हो चुका है। सुनामी आया था, उसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था, उसके बाद वापस से सुनामी आया। जापान पूरा का पूरा 3 बार डिस्ट्रॉय हो चुका है। ऐसा कोई कंट्री जो 3 बार डिस्ट्रॉय होके भी वर्ल्ड में सबसे आगे है टेक्नोलॉजी में। समझ लीजिए कि वो कितना काम करते हैं, कितना यस सर। काम करते हैं। जस्ट थिंक ऑफ अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम, बाप रे। ऐसा कुछ होना चाहिए। सो ऐसे लोगों को अपने सामने रखो और आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए। आई डेयर यू, आपको सक्सेस मिलेगा ही। और इसी टाइप से जापानीज लोग हमसे बहुत आगे चले गए। नाउ वी ट्राई एंड कॉपी देम। जो वो करते हैं वही हम करते हैं, जो वो कर रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी वो मार्केट में ला रहे हैं वही हम लोग भी कर रहे हैं। राइट। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट 7 वेस्टेजेस। अब ये 7 वेस्टेजेस क्या है, ध्यान से देखिए, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। वेस्ट फ्रॉम ओवर प्रोडक्शन। राइट। घर में आपके लोग हैं 4, वो 2-2 रोटियां खाते हैं, तो मतलब 8 chapatis has to be there, but your mom cooked 10 chapatis. so ये 2 चपाती था, वो ओवर प्रोडक्शन हुआ, उसको किसी ने खाया नहीं। शाम को वेस्ट। फिर हम लोगों ने फ्रेश राइस बनाया, कुछ और बनाया, तो ये वेस्ट हो गया। सो ओवर प्रोडक्शन इज वेस्ट। सो ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको 10 क्वांटिटी का ऑर्डर था, आपने बनाया 11, वो एक भी इसको बंद करो। वेस्ट ऑफ वेटिंग टाइम। वेस्ट ऑफ वेटिंग टाइम मीन्स रॉ मटेरियल प्रोसेस हुआ, हाफ प्रोसेस हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस है और वो रुका हुआ है, 24 घंटे वो उधर ही रहता है। और नेक्स्ट डे फिर सारा खत्म होने के बाद कोई लेबर आके उसको उठाते हैं, देन वर्क इज ऑन दैट पर्टिकुलर WIP। वेस्ट ऑफ टाइम, राइट। वेटिंग टाइम, आई एम सेइंग वेटिंग टाइम। ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट। आप ये मोबाइल मैंने यहाँ से उठाया और मैं यहाँ से इंस्टीट्यूट लेके गया, दिस इज जस्ट ट्रांसपोर्टेशन, बट ये यूटिलिटी है इसीलिए मैं कर रहा हूँ। बट सोच के देखिए, रॉ मटेरियल आप एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह लेके जा रहे हैं, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर मनी, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यू। ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज के लिए पैसे लगते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में पानी के लिए भी पैसे लगते हैं, तो अगर आपने टैप खुला रखा, दैट इज ऑल्सो वेस्ट। सो ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट मीन्स वर्कर, मैंने जैसे कल बताया था कि दूसरे रूम में वर्क इन प्रोग्रेस या रॉ मटेरियल है, वहां से मैं उठा के यहाँ ला रहा हूँ, यहाँ से फिर मैं उठा के मशीन पे रख रहा हूँ। सो दिस इज ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट। यहाँ पे आप बोलोगे सर पैसा कहाँ लग रहा है, बट यू आर पेइंग दैट वर्कर। वो बंदा उठा के यहाँ पे ला रहा है, यहाँ से उधर लेके जा रहा है, तो दैट इज अ वेस्ट। सो ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट। वेस्ट ऑफ प्रोसेसिंग इटसेल्फ, मतलब आपने एक चीज को प्रोसेस किया, वो ठीक नहीं हुआ, वापस से प्रोसेस करने की शुरू कोशिश की, इट्स अ वेस्ट। दैट इज प्रोसेसिंग वेस्ट, राइट। वेस्ट ऑफ स्टॉक। रॉ मटेरियल आपने रखा अपने पास, इन्वेंट्री आपने काफी सारा रखा हुआ है घर में, जो आपके यहाँ पे गेहूं की बोरियां लगती है, आई अंडरस्टैंड, बट सोच के देखिए कि सही में 5 बोरियां लगती है क्या? सही में 10-15 लीटर का तेल का कैन लगता है क्या? राइट। दैट इज अ वेस्ट। व्हाई? बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन दैट एंड दैट इज वेस्टेड, मतलब वो खराब होकर आप उसको फेंक देते हैं। वेस्ट ऑन मोशन। वेस्ट ऑन मोशन मतलब मैं यहाँ पे हूं, मैं यहाँ से यहाँ से वॉशरूम आधा किलोमीटर दूर है, एक कंपनी में वॉशरूम आधा किलोमीटर दूर है। सो एवरी वर्कर, उसको अगर फ्रेश होना है तो वो अपना काम बंद करेगा, मशीन बंद करेगा, एंड ही विल ट्रैवल ½ किलोमीटर।
and again he will come back. Waste of motion. Not only that, मशीन का पार्ट नीचे था, मैंने नीचे से उठाया मशीन पे रखा, फिर नीचे इधर रखा, फिर यहाँ से दूसरा पार्ट उठाया, वापस से मैंने मशीन पे प्रोसेस किया, वापस से नीचे रखा. दिस इज अ वेस्ट ऑफ मोशन. वेस्ट ऑफ मेकिंग डिफेक्टिव पार्ट्स. वो प्रोडक्ट आपने डिफेक्टिव बनाया, बल्ब बनाने थे, बल्ब जलता ही नहीं है, उसके ऊपर का रॉ मटेरियल, उसके ऊपर का लेबर चार्जेस, उसके ऊपर का टाइम, हर चीज आपने वेस्ट कर दिया. सो दीज 7 वेस्टेजेस यू नीड टू रिमेम्बर. एंड जापानीज ने हम लोगों को यही टेक्निक्स दिए हैं कि ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन वेस्ट. आप पेपर, रफ पेपर यूज करते हो घर में, या फिर आप पेपर राइटिंग के लिए यूज करते हो, ऊपर का जो मार्जिन रहता है वो छोड़ के आप नीचे लिखना शुरू करते हो, यू आर वेस्टिंग दैट पेपर. एनीवेज आपको नोट्स ही बनाने, तो व्हाई नॉट फ्रॉम द टॉप लेवल ऑफ द पेपर, यू आर वेस्टिंग पेपर. सोच के देखिए कि बचपन से लेके 22 साल तक आप पेपर यूज कर रहे हो, कितने पेपर आपने वेस्ट किए रहेंगे इस टाइप से. ऊपर का पार्ट बचपन से लेकर अभी तक आपने काट के रखे रहते, तो आज उसका वेट कितना हो गया रहता, 10 किलो 15 किलो का पेपर आपने वेस्ट कर दिया. 15 किलो का पेपर का पैसा कितना रहता है, उतना पैसा आपने वेस्ट कर दिया, राइट. अननेसेसरी आप बाइक्स को स्टार्ट रखते हैं सिग्नल पे, जस्ट टू इम्प्रेस समवन, या आपकी कार चालू रहती है और आपका उस पे एक्सीलरेटर पे पैर रहता है, जस्ट टू इम्प्रेस समवन. दैट इज अ वेस्ट ऑफ फ्यूल. समझ में आ रहा है? सो Yes, sir. इन ऑर्गेनाइजेशन. सो ऑर्गेनाइजेशनल वेस्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. व्हाई इंपॉर्टेंट? बिकॉज अगर ये वेस्ट हम लोग कम कर पाए तो हमारा प्रॉफिट बढ़ता है. ये जितने भी वेस्ट यहाँ पे दिखाए, अगर ये 0 हो गए तो आपका प्रॉफिट 10 to 20% बढ़ सकता है. मतलब आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है. नो वैल्यू एनालिसिस, नो एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग, अपने आप आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, 10 to 20% आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, राइट. नाउ यू विल से कि सर अपने बारे में हमेशा बताते रहते हैं. Why? Because that will give you a clear picture. When I took a charge of production officer, like I was production supervisor, I completed my MSc and then I joined a company. So there I was a supervisor, but I worked for I think 3 to 4 years as a supervisor, and then they gave me an offer of production officer, and then I become a manager. So what I did is, the moment I took a charge, the production increased by 35%. मैन पावर वही था, सिर्फ रॉ मटेरियल ज्यादा लग रहा था, बट मैन पावर वही था. सेम इक्विपमेंट्स, सेम मशीन्स वे देयर. 35% ज्यादा प्रोडक्शन निकलना शुरू किया जब मैंने चार्ज लिया. व्हाई? आई स्टॉप्ड दीज वेस्टेजेस. क्योंकि मुझे नॉलेज था, मैनेजमेंट का भी मुझे नॉलेज था. दैट्स व्हाई आई कुड इंक्रीज 35%. एंड इन द मीटिंग, एमडीज की जो मीटिंग रहती है टॉप मैनेजमेंट की, वहां पे हमारे जो जनरल मैनेजर गए थे, ही वाज वर्किंग इन दैट कंपनी फ्रॉम लास्ट 30 years. एंड अ क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय एमडी टू दिस जनरल मैनेजर कि आप इतने सालों से इस कंपनी में काम कर रहे थे, व्हाई कुड नॉट यू अचीव दिस? और ये बच्चे ने कैसे किया? दैट टाइम आई वाज यंग. ये बच्चे ने कैसे किया? So try and understand when you stop wastages. आप अपने घर में भी पेन की रिफिल, जो पेन यूज करते हैं उसकी रिफिल इतना बचता है तो भी आप उसको उठा के फेंक देते हो. दैट इज अ वेस्ट, because your parents have invested money into it. You are not attending lectures is a waste of money. आप कैलकुलेट करके देखिए, in a year you pay 85,000 to the institute, right? So for 2 years, 85 plus 85, how much? And there are 365, 366 days in 2 years. दोनों को ऐड कीजिए, उतने अमाउंट से डिवाइड कीजिए. पर डे 200-250 रुपए का आपका खर्चा रहेगा, वो आप वेस्ट कर रहे हो अगर आप एक लेक्चर नहीं कर रहे हो तो. राइट? अंडरस्टूड? Yes, sir. Understand this, you can become a best manager, production manager. For females, आप अपने घर में ये करते हो. फॉर मेल्स, अगर आप अपनी फैमिली में ये सब चीजें इम्प्लीमेंट करने लग जाए तो यू विल सी आपका सेविंग जो है वो 10-20% बढ़ जाएगा इन लॉन्ग टर्म. आई एम सेइंग लॉन्ग टर्म. छोटी सी छोटी चीज का वेस्ट आप करना कम कर दीजिए. व्हेन यू कट अ ऑनियन, यू कट अपर पार्ट, लोअर पार्ट, यू आर वेस्टिंग इट. थोड़ा सा पास से कट कीजिए. I'm giving you small examples where you can save your own money.
Same way in organization also, when you are working on a top position, you need to understand the wastages. आप वॉशरूम में गए, वॉशरूम में देखा कि आपने पानी टप 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 गिर रहा है, and not from one tap. Organization बड़ा रहेगा तो there are 5, 6, 10 washrooms और वहां पे near about hundreds of taps are there. हर एक टैप में से एक एक बूंद एक सेकंड में गिर रही है. Just imagine 24 hours में कितना पानी वेस्ट हो रहा है 100 टैप्स में से. And you are paying more amount on industrial rates for water. Electricity, एक बल्ब भी अगर आपकी इंडस्ट्री में चालू रहेगा तो वो आप 12 रुपीज या 13 रुपीज पर यूनिट, जो हम लोग घर में 5 to 7 रुपीज पर यूनिट के इससे देते हैं, वहां पे 10 to 12, 16, 17 रुपीज यूनिट से भी पे करना पड़ता है. So you are wasting it. Now, we were talking about TQM, just in time and lean. Oh my God, it is 7:18. Another 2-3 minutes if you don't mind, right? And Kanban. ये छोटे-छोटे जो terms है ये हम लोग समझ लेते हैं आज. So what is TQM? Total quality management. Very good. This is total quality management. But again, it comes under lean manufacturing system. Total quality management made up of the whole. Total means पूरा. Quality means degree of excellence. जो हम लोगों ने बात की. Degree of excellence. Product or service provides. Now, management मतलब act of manner, planning, controlling, directing. So total पूरा, quality, degree of excellence, पूरी degree of excellence और उसको manage करना is TQM. It is an art of managing the whole to achieve excellence. टोयोटा या फिर जो जापानीज कंपनीज है या जापानीज है, उन लोगों ने हमें TQM दिया हुआ है. TQM में उन्होंने कहा है कि पूरे की पूरी क्वालिटी को मैनेज करने की कोशिश कीजिए, हर चीज की क्वालिटी मेंटेन रखिए, राइट? इट मींस ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर, जो पूरा कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको TQM में कन्वर्ट कर दीजिए. एवरीवन इज थिंकिंग अबाउट क्वालिटी, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट क्वालिटी एंड कांस्टेंट अटेनमेंट ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज TQM. पहले हम लोग ऐसे सोचते थे कि क्वालिटी कैन नॉट बी इम्प्रूव विदाउट सिग्निफिकेंट लॉसेस इन प्रोडक्टिविटी. मतलब हम लोग कुछ भी बना रहे हैं, पहले 10 प्रोडक्ट तो ऐसे वेस्ट हो जाएंगे बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. दैट वाज ट्रेडिशनल व्यू. बट TQM व्यू क्या है? इम्प्रूव्ड क्वालिटी लीड्स टू इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी. पहले बार से डू इट राइट फर्स्ट टाइम, डू इट राइट फर्स्ट टाइम. दैट इज TQM. नाउ customers makes the ultimate determination of quality. मतलब customer decides the quality. That is very true. Top management must provide leadership and support for all quality initiatives. Preventing variability is the key to produce high quality and commitment towards continuous improvement. So TQM का एक ही गुरु मंत्र है, which you all should remember, that continual improvement has to be there. कोई भी improvement एक दिन में या रातों रात नहीं होता है. रोज improvement कीजिए. आपने आज अगर एक्सरसाइज करना शुरू किया तो इन 1 month you will start getting the results. So if you start doing something new today to improve the quality, it will show improvement slowly. जब तक वो आपका हैबिचुअल नहीं होता है, सारे के सारे लेबर्स उसको इम्प्रूव नहीं करने की कोशिश करते हैं, तब तक कुछ नहीं होगा, राइट? सो दैट इज TQM. फाइन. लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हम लोगों ने ये बात कर दिया है विदाउट एनी डाइवर्जेंस. लीन के बारे में यू नो नाउ. या सी, Japanese has given us these terms. 5S टेक्निक जिसे कहते हैं हम लोग वेस्ट कम करने की. सीरीटॉन, सीटॉन, सिसोन, सिकिस्टू एंड I don't know. Somehow I'm unable to pronounce it. It is Ichuku. So इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए. One is sort, arrange, clean, improve, standardize, maintain and self discipline. ये 5 टर्म अगर हम लोग मेंटेन करते हैं तो we will improve the quality of the product and we will definitely be able to reduce the wastages. शॉर्ट में क्या रहता है? जो भी हम लोग रॉ मटेरियल यूज करते हैं उससे काफी सारा प्रोडक्ट
काफी सारा रॉ मटेरियल साइड में निकलता है, मतलब लेथ मशीन पे इफ यू आर ड्रिलिंग तो उसमें से बर निकलने लगती है, बट नाउ इफ वी स्टार्ट ड्रिलिंग इन डिफरेंट मटेरियल, एल्यूमिनियम वी आर ड्रिलिंग तो उसका एल्यूमिनियम का वेस्ट आ गया, वी आर ड्रिलिंग इन आयरन रॉड तो आयरन का थोड़ा सा वेस्ट आ गया, बट अगर हम लोग इसको अलग अलग रखेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी। सबसे ज्यादा कमाने वाले स्क्रैप वाले लोग रहते हैं, वो आपके यहाँ से कचरा उठा के लेके जाते हैं और वहां पे वो गोल्ड की वैल्यू से बेचते हैं, दैट्स व्हाई दे से स्क्रैप इज गोल्ड, स्क्रैप इज गोल्ड। और सबसे ज्यादा पैसा स्क्रैप वेंडर्स के पास रहता है, ये जो बड़े बड़े स्क्रैप वेंडर्स है, दे अर्न करोड्स ऑफ रुपीज इन अ मंथ, करोड्स ऑफ रुपीज, बिलीव मी, ट्रस्ट मी। हाउ? दे सॉर्ट एवरीथिंग, सारे घरों में से थोड़ा थोड़ा जो मटेरियल आ रहा है उसको वो अलग अलग रखते हैं, अलग अलग फैक्ट्री से जो वेस्ट आ रहा है वो मिक्स तो रहता है, बट जैसे ही वो लेके आते हैं उसको अलग अलग करते हैं। सो व्हाई नॉट टू डू इट इन द कंपनी इटसेल्फ। आप लोग कुछ मिक्स चीज मार्केट में लेके जाओगे और बेच दोगे तो उसका वैल्यू उतना नहीं मिलेगा जो आप सेग्रीगेट करके लेके जाओगे। एक ही बोरी में आपने पेपर भरा, एक ही बोरी में आपने प्लास्टिक डाल दिया, एक ही बोरी में आपने आयरन के कुछ पीसेस डाल दिए, नट बोल्ट्स डाल दिए, तो यू विल व्हाट ही विल डू इज वो उठाएगा मशीन पे रखेगा, ओके ये लो 5 रुपए किलो, बट देन व्हेन ही विल सॉर्ट इट आउट दैट 5 रुपीज विल टर्न टू 25-30 रुपीज, तो वो उसका प्रॉफिट रहता है। सो व्हाट दे से, सॉर्ट एवरीथिंग। फैक्ट्री में जितना भी वेस्ट आ रहा है, पेपर वेस्ट है उसको अलग रखिए, स्टील वेस्ट है उसको अलग रखिए, आयरन वेस्ट है अलग रखिए उसको, मेटल वेस्ट है, मेटल्स में भी अलग अलग मेटल्स यूज होते हैं उसको अलग रखिए, राइट। अरेंज नेसेसरी आइटम्स इन गुड्स। स्टोर्स में जो आइटम्स रखे रहते हैं, जैसे आपके घर में किचन रहता है अच्छे से अरेंज करती है, दैट इज कॉल्ड एज सिट ऑन। उसको आप ठीक से रखेंगे, जब जो चाहिए मिल जाएगा आपको। स्टोर्स में ऑर्गेनाइजेशन हाउ इट वर्क्स, यू आर वर्किंग ऑन अ शॉप फ्लोर, आपके बॉस ने कहा कि ये मटेरियल लेके आना है, देयर इज अ रिक्विजिशन स्लिप, व्हेन दिस रिक्विजिशन स्लिप यू विल कैरी टू अ स्टोर, स्टोर मैनेजर क्या करेगा, वो देखेगा और अपने आदमी को कहेगा ठीक है इनको ये मटेरियल दे दो, बट द स्टोर वर्कर और द स्टोर पर्सन इज नॉट एजुकेटेड, उसको पढ़ना ही नहीं आता है, तो व्हाट ही विल डू, ही विल गो टू एवरी रैक और वो देखने की कोशिश करेगा कि इसमें क्या लिखा है और इसमें से कौन सी चीज मुझे देनी है, ही विल वेस्ट टाइम। एज आई सेड, टाइम इज मनी, सो अ सिंगल सेकंड वेस्ट मींस ही इज मेकिंग लॉसेस टू द कंपनी। इसीलिए हर एक इस पे अगर कलर कोडिंग रहेगा और उसको बता दिया कि रेड वाले इनको 5 देना, ग्रीन वाले 2 देना और ब्लू वाले 1 देना, that is easily identifiable. So what they are saying is arrange everything in order and code it. Clean the workplace. आपका जो वर्कप्लेस है हमेशा क्लीन रखिए, टाइडी रखिए उसको, और सेल्फ डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट। सेल्फ डिसिप्लिन, सिग्नल पे रुकना है मतलब रुकना है, भले फिर रात के 12 बजे 2 बजे या फिर मॉर्निंग में सॉरी आफ्टरनून में 2 o'clock हो गए, आपने सिग्नल फॉलो करना है मतलब करना ही है, आपने जो प्रोसेस दिया है उसको फॉलो करना है मतलब करना ही है। वी ऑल आर वेरी वीक इन फॉलोइंग द प्रोसेस, वी आर वेरी वीक। जिस दिन हम लोगों ने आपको पढ़ाना शुरू किया उसी दिन अगर आपने सारे असाइनमेंट सॉल्व करना शुरू किए, it becomes very easy। या डे 1 से आपने रोज थोड़ा थोड़ा असाइनमेंट किया है, गिव हाफ एन आवर फॉर असाइनमेंट डेली, हाफ एन आवर आई एम सेइंग, तो 15-20 दिन में आपका असाइनमेंट क्यों नहीं होगा? सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, हम लोग अपना टाइम मैनेज नहीं करते, हम लोग अपने आप को ठीक से रखते नहीं है। फाइन, या जस्ट इन टाइम, आई हैव यू जस्ट इन टाइम क्या रहता है, जो भी चाहिए जब चाहिए तब लीजिए, उसके ऊपर पैसे इन्वेस्ट मत कीजिए। आप लोगों ने 10 किलो चीनी ला के रखी है, आपको 5 ही लगती है, 2 ही किलो लगती है, 2 किलो लाइए, बचा हुआ पैसा अपने बैंक में रखिए, लिक्विड मनी अपने हाथ में रखिए, कैश अपने पास रखिए, दैट विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर वर्किंग कैपिटल। फाइनेंस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड Yes, sir. that is just in time। So just in time techniques, setup time reduction, just in time layout, buffer stock removal, buffer stock मतलब सेफ्टी स्टॉक जिसको हम लोग कहते हैं, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहिए, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, मैंने जैसे कहा प्रिवेंशन ऑफ मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन होने के बाद ही मेंटेन मत कीजिए, प्रोसेस में उसको मेंटेन कीजिए। इफ यू हैव 5 और 6 मशीन्स, सो डेली एक मशीन या फिर मंथ में एक मशीन को एक दिन कीजिए, दूसरी मशीन, तीसरी, चौथी, ऐसे उसका एक शेड्यूल बना लीजिए और फिर उसको मेंटेन कीजिए, सो दैट यू विल नॉट स्टॉप द कंप्लीट प्रोसेस। नहीं तो आप 6 की 6 मशीन बंद कर दी, पूरा दिन मशीन बंद है, कोई प्रोडक्शन नहीं है और आप उसको मेंटेन कर रहे हो, यू आर इनकरिंग लॉसेस टू द कंपनी। क्वालिटी एट सोर्स, जो भी चाहिए आप अपने जगह पे उसको मंगाने की कोशिश कीजिए, कम से कम टाइम में मंगाने की कोशिश कीजिए, यू विल इन्वेस्ट
so you will save lots and lots of money of the organization, right? अगर आपके घर के पास ही ग्रोसरी शॉप है तो every time you need not store items in your house, वो आपके लिए कर रहा है ना। आप लोगों ने क्या करना है, जो चाहिए जैसे चाहिए लाइए यूज कीजिए, लाइए यूज कीजिए, जस्ट इन टाइम परचेसिंग, जस्ट इन टाइम परचेसिंग। कानबान, कानबान is a very interesting method of ordering the material. कानबान, कानबान मतलब एक कार्ड रहता है, इसको विड्रॉल कार्ड्स भी कहते हैं, प्रोडक्शन कानबान में प्रोडक्शन कार्ड्स भी कहते हैं। वो कार्ड ऐसे दिखता है, ये क्या रहता है, बिन रहता है। बिन मतलब एक बॉक्स रहेगा, उसमें रॉ मटेरियल रखा रहता है, उसके नीचे ये कानबान कार्ड रखा रहता है, उसके ऊपर कानबान कार्ड रहता है, उसमें आइटम नंबर, पार्ट नंबर, क्वांटिटी, लोकेशन, सप्लायर, रिटर्न ऑफ कारमा 2, मतलब ये कानबान किसको रिटर्न करना है वो भी लिखा रहता है। आपने जब ये प्रोडक्ट यूज, रॉ मटेरियल या नट बोल्ट यूज करने शुरू किए, नट बोल्ट खत्म हो गए, जैसे ही खत्म होते हैं, जो लास्ट लेबर रहता है जिसने वो उठाया, उसने ये कार्ड देखा, उसने जैसे ही ये कार्ड देखा, उसने इसमें लिखा हुआ है कि रिटर्न कानबान, कानबान मतलब इस कार्ड को कानबान कहा जाता है। रिटर्न दिस कार्ड टू whom, जिसका भी नाम लिखा रहेगा वो कार्ड ले जाके मैं उस इंसान को दे दूंगा या फिर उस सप्लायर को दे दूंगा। समझ में आ रहा है? और उसके बगल में ही सेम नट बोल्ट का एक और बॉक्स रखा हुआ है। सो वन बॉक्स इज ओवर, इमीडिएटली यू ऑर्डर। हमारे घर में ऐसे ही रहता है। द मोमेंट 1 kg ऑफ शुगर इज कंज्यूम्ड, योर मॉम सेज टू डैड, चीनी खत्म हो रही है, आपको लेके आना है। इट मीन शी इज गिविंग अ कानबान टू योर फादर। वो रिटर्न में नहीं रहता, बट देन दैट इज वर्बल कानबान। रिटर्न में कानबान रहता है, हम लोगों ने ये जापानीज से सीखा है। सो एट द बॉटम ऑफ एवरी बिन देयर इज अ कार्ड, और उस कार्ड को हम लोग आगे देते हैं, तो वो का सिस्टम ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है, राइट? सो यू नीड नॉट रिमेंबर द थिंग्स कि ये खत्म हो गया तो हम लोगों को ये सप्लायर को देना है, इतनी क्वांटिटी मंगानी है, कुछ नहीं, एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। सो एवरी बिन हैज अ कार्ड एंड दैट कार्ड इज कॉल्ड एज कानबान। सो वो कानबान आगे जाते रहते हैं, ऑटोमेटिक वो सप्लायर के पास जाते रहते हैं, और सप्लायर वो देता रहता है। सो दैट improves or that helps just in time production also. कार्ड गया, उसको जैसे ही कार्ड मिला उसने वो बेच दिया, तब तक आपका ये वाला बिन के जो नट बोल्ट है वो खत्म हो रहे हैं। जैसे वो आए, आपने इसके नीचे भी कानबान है, जैसे ये खत्म हुआ, कानबान वापस चला गया, कार्ड वापस चला गया सप्लायर के पास, वापस आ गया, वापस गया। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं जितना इजीली आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इट इज नॉट सो इजी, बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मटेरियल्स यूज्ड। कार बनाने के लिए कम से कम 1600 आइटम्स लगते हैं, 1600 प्लस छोटे छोटे पार्ट्स, राइट? ये सब आपको स्टोर करके रखना पड़ता है, तब आप कार को असेंबल कर सकते हो। एक छोटा सा कोई भी टॉय आप मार्केट से खरीद के लाइए, या जो भी आपके घर में रहेगा उसको ओपन कीजिए, और उसमें से कितने पार्ट्स निकलते हैं कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि एक छोटे से नट बोल्ट से लेके एक बड़ा सा पार्ट, ये सब चीजें हम लोगों को असेंबल करते समय इसका स्टॉक होना जरूरी है। और यहाँ पे काफी सारे लेबर काम कर रहे हैं जिनको मैं पैसे दे रहा हूँ, विच कम्स अंडर फिक्स कॉस्ट। लेबर ने 1 भी मिनट काम नहीं किया तो भी मुझे उस 1 मिनट का उसको पैसा देना है। लेबर वहां पे अगर कुछ खा रहा है, उसमें 10 मिनट उसने वेस्ट किया, आई नीड टू पे 10 मिनट्स पैसा टू हिम, राइट? तो ये सब मेरा वेस्टेजेस है जिसको मुझे कम करना है, मुझे जस्ट इन टाइम इंप्लीमेंट करना है, कानबान से करना है। ये सब चीजें समझने की कोशिश कीजिए। कंसेप्ट ऑफ इंटरनल कस्टमर, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ इंटरनल कस्टमर। अपने कंपनी के अंदर ही कस्टमर्स रहते हैं, मेरा डिपार्टमेंट अलग है, आप लोगों का अलग है। सो मेरे यहाँ से जो भी वर्क इन प्रोग्रेस आपके पास आ रहा है, I am the supplier, you are the customer to me. So this is internal customer concept. यहाँ पे भी satisfaction, यहाँ पे भी quality, यहाँ पे भी just in time, यहाँ पे भी कानबान implement होना जरूरी है. And then we can improve the productivity. Right? We talk about global competition. Now, global competition, we will stop here. This is the last slide. ग्लोबल कंपटीशन मैंने जैसे बताया 1986 एनवर्ड्स हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात किया। सो मोर एंड मोर पीपल और मोर एंड मोर सप्लायर्स, मोर एंड मोर एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स स्टार्टेड कमिंग इनटू द पिक्चर, और उन लोगों ने हमारे साथ बिजनेस शुरू किया, हम लोगों ने उनके साथ बिजनेस शुरू किया। तो जैसे ही मल्टीनेशनल कंपनीज आने शुरू हो गए, प्राइस वॉर शुरू हो गया।
प्राइस वॉर किसमें शुरू हुआ? जो लोकल सेलर्स थे और जो बाहर से, जैसे मैंने कल आपको बताया वेजिटेबल वेंडर्स, जो भी बाहर से फार्मर आके वहां पे वेजिटेबल बेचने की कोशिश करता है, तो ये रेगुलर वेंडर्स उसको बेचने नहीं देते, या तो उससे पूरा माल खरीद के उसको बोलते हैं चल भाग अभी, या फिर दे से कि नो नो यू कैन नॉट स्टैंड हियर, दिस इज आवर एरिया। व्हाई? बिकॉज ही इज सेलिंग एट अ लो प्राइस। मल्टीनेशनल्स भी क्या करते हैं? दे मैन्युफैक्चर इन बल्क, चाइना मैन्युफैक्चरिंग इन बल्क एंड pushing all the material to India or to many other countries, और हम लोग उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। बट हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं? दिवाली आई, आप लोगों ने जो लाइट की माला है वो आपने खरीदा, आपने लैंप खरीदा, आपने बहुत सारे दिए खरीदे। ये क्यों खरीदे? क्योंकि वो सस्ते थे। और जो इंडियन हैंडमेड बनते हैं आपने उसको नहीं खरीदा बिकॉज वो महंगा था। सो व्हाट इज हैपनिंग? दिस इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल कॉम्पिटिशन। तो जो चीज सस्ती मिल रही है मैं वही खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? और जो महंगी है, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर है वो महंगा बनाते हैं बिकॉज दे डू नॉट फॉलो जस्ट इन टाइम, दे डू नॉट फॉलो कांबान, दे डू नॉट अंडरस्टैंड 5 years, दे डू नॉट अंडरस्टैंड 7 वेस्टेजेस। उनको कुछ समझता नहीं है, तो वो अपना प्रोडक्ट जो है वो महंगा बेचने की कोशिश करते हैं बिकॉज उनको कॉस्टिंग ही महंगा पड़ता है। बट स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट once we adopt all these technologies, self discipline जब हमारे इसमें आ जाएगा तो automatically my product cost will decrease. So as a manager ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, कहां मैं कंपनी का पैसा बचा सकता हूं। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। एक पेपर आपने एक दिन में बचाया, एक पेपर एक दिन में, एक पेपर का हम लोग प्राइस पकड़ते हैं ₹1, 365 रुपीज आपने बचाए साल के। मैं उस कंपनी में काम कर रहा हूं 10 साल, into 10 it multiplies, so saving multiplies। एक पैसा आपने बचाया, ऐसे में 1000 यूनिट्स बना रहा हूं एक दिन में, तो मैंने 1000 पैसे बचा लिए, राइट? डेली कितना, ईयरली कितना, अंडरस्टैंड ये सब चीजें। देन कम्स आईपीआर। आईपीआर इज व्हाट? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और पेटेंट्स और कॉपीराइट्स। इसके बारे में हम लोग काफी बार बात भी करते हैं कि ये कॉपीराइट है, इसका पेटेंट इस कंपनी के पास है। काफी सारे इंडियन जो आयुर्वेदिक रॉ मटेरियल है दैट इज पेटेंटेड ऑन यूएस नेम। बासमती राइस के ऊपर पेटेंट के लिए काफी झगड़ा चल रहा है, इंडिया कहता है हमारा पेटेंट है, वो कहते हैं उनका पेटेंट है। इस पे काफी सारा, व्हाट इज इट? कोई भी नई चीज, कोई भी नया डिजाइन आप लोग बनाते हो तो आप लोग उसका पेटेंट ले लेते हो। वो डिजाइन यूज करने के लिए आपको 10 साल दिए जाते हैं कि आप इस डिजाइन को यूज कीजिए और आप अपना पैसा कमाइए। यू कैन सेल दिस डिजाइन टू एनीवन। आप लोगों ने हाइड्रोजन और पानी से बनने वाली एक गाड़ी बना ली जो पानी से चलती है। आई एम सो सॉरी, इट वर्क्स ऑन वाटर। तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है, उसको आपने अलग किया और उस एनर्जी से आपने गाड़ी चलाई। ये जो टेक्नोलॉजी आपने बनाई आप पेटेंट कर सकते हो। पेटेंट करने के बाद तो 10 साल का टाइम देगी कि 10 साल में आपको इस पे जितना पैसा कमाना है कमा लो। देन दिस डिजाइन विल बी सोल्ड टू ऑल, मतलब कोई भी इस डिजाइन को यूज कर सकता है, राइट? तो पेटेंट में आपके नाम पे वो रहता है, नो वन एल्स कैन यूज इट। कोई और यूज भी करता है तो आप उसको स्यू कर सकते हो, उससे आप पेनल्टीज ले सकते हो, कोर्ट में इस पे केस भी चल सकता है। कॉपीराइट, कॉपीराइट मतलब जो रिटर्न मटेरियल रहता है, आपका कंसेप्ट है, आपका आइडिया है, आपने बुक लिखा है, आपने कुछ अच्छे आइडियाज लिखे हैं, वो किसी और ने चुरा लिए, मेरे नोट्स क्लास के किसी और ने चुरा लिए और उसने क्लास में पढ़ाना शुरू कर दिया, दैट इज कॉपीराइट, दैट इज अगेंस्ट कॉपीराइट। सो दे कैन नॉट डू दैट। सो जैसे ये ग्लोबलाइजेशन हुआ, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब चीजों का प्रॉब्लम शुरू हो गया बिकॉज वहां पे बनने वाली चीज मैं यहाँ पे कॉपी नहीं कर सकता। अभी यहाँ पे बनने वाली चीज दे कैन नॉट कॉपी बिकॉज इट इज अ पेटेंट। सो वर्ल्ड पेटेंट जो है, पूरे वर्ल्ड का पेटेंट कंट्रोल करना, जस्ट अंडरस्टैंड दैट ऑर्गेनाइजेशन, दोज हु आर डूइंग इट, इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, very difficult task. So we will stop here. I hope you have understood whatever I have tried to tell you. Queries, काफी सारे नए टर्म्स हम लोगों ने आज भी सीखे। Yes. Yeah. Thank you, sir. Queries. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. अच्छा लगेगा, start talking to me. Yes. Any queries? कुछ चीजें नहीं समझ में आई है या फिर if you want some elaboration, fine. As someone says yesterday, पढ़ लीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम आता है नेक्स्ट डे मुझे पूछ लीजिए। Fine. So shall we call off the meeting? Yes, sir. Yes.
Thank you. Have a wonderful day. Enjoy your day. Take care. Bye. Thank you, Mohit sir. Thank you, sir.